हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARYZ app, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and we have finally reached the finals. It is the big day. It is the day that many have been waiting for and anticipating. Today is full of excitement. आज के दिन दोस्तों हम आपको बराह रास्त लेकर चलेंगे मेलबर्न, जहां पर आज पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड है। हमारा फाइनल मैच आपकी स्क्रीन पे मैच आइडेंट आ रहा है, इसको देख लीजिए। दिस इज हाउ इट्स गोना गो डाउन। मौसम के बारे में बहुत सी बात होती रही है, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट्स देंगे। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एट द मेलबर्न, starting at 1 p.m. Pakistan Standard Time. This is the day, this is the moment, this is what we've all been waiting for. And with me in the pavilion, I have the honor and the great privilege of sharing this space with four of the finest cricketing legends in the game. These four gentlemen have served Pakistan and the game of cricket really, really well. और मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती थी कि एक दफ़ा फिर pavilion में इनके साथ मैंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए. In with me, with the pavilion, I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Good morning and assalamu alaikum. Good morning. Assalamu alaikum. The most successful test captain of Pakistan's history, Mr. Reliable, Mr. Dependable, Mr. Misbah-ul Haq. Assalamu alaikum, Misbah. Good morning. Assalamu alaikum. One of the most ferocious fast bowlers the game has ever seen, the toe-crushing batsman, terrorizing, Mr. Wonderful, Waqar Yunus. Waqar, good morning. Hello. Assalamu alaikum. And finally, ladies and gentlemen, the greatest of all time, the man who wrecked so many batting lineups and destroyed so many bowlers over his career, the monarch himself, His Highness Mr. Wasim Akram. Assalamu alaikum and good morning, Assalamu Wasim. alaikum and good morning everyone. Great day today. ये जरा वकार बताएं, ये क्या किस तरह सलाम करते हैं हम? वाह, क्या? Alaikum assalam. और ये कौन करते हैं सबसे ज्यादा? Yes, Wasim Akram, right? Wasim, big day. Huge day, massive day, excitement all around. The whole country will be awake. Pakistani living in Pakistan and Pakistani living abroad. They'll be glued to their television. I think खुशी का दिन है, जो सारों को जरा upbeat, enjoy, positive energy is very important. Absolutely. और वकार, इन्होंने कहा, Pakistanis all over the world. So are the English all over the world. Super excited. For Pakistan though, surprised, because एक time था जब यूं लग रहा था Zimbabwe से हारने के बाद कि we won't make it to this stage. But here we are. Yeah, this is T20 cricket for you. I mean, कहाँ से आए, कहाँ पहुँच गए. I think Pakistan played well. I mean, ठीक है, maybe one odd game हम थोड़ा इतना अच्छा नहीं खेले हैं, लेकिन ये है कि what counts is that how many games you win, and Pakistan have won 4 games out of their 6 games. Yeah. So they have played well. So we are all excited. मैं तो सुबह से इतना excited हूँ कि I'm just so energy. Yeah, it's all energy. Anxiety. And, my family is there. Wasim bhai's family is there. So they are all supporting the entire country is supporting, the entire world is supporting this match, and of course Pakistanis all around the world. It's a massive day. It is a massive day, no question about it. This has been a very interesting World Cup, Misbah. A lot of, surprises, a lot of ditches and pits every here and there. पाकिस्तान के लिए तो सारे वर्ल्ड कप ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस दफ़ा बाकी टीमों के लिए भी ऐसे थे. तो ओवरऑल आई थिंक डिफरेंट कंडीशंस और ग्राउंड्स टोटली डिफरेंट. कहीं पे थोड़ी सी पिचेस ग्रीन मिली, कहीं पे स्पिन मिली, कहीं पे बैटिंग फ्रेंडली थी. तो ओवरऑल मेरे ख्याल में हर चीज़ टेस्ट हुई है सारी टीमों की. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली बॉलर्स को, और फास्ट बॉलर्स को भी मिली, स्पिनर्स को भी. कई दफ़ा ऐसे होता है जैसे UAE में स्पिनर डोमिनेट कर जाते हैं. तो आई थिंक इट वाज अ गुड टूर्नामेंट इन अ सेंस कि डिफरेंट कंडीशंस की वजह से सबको चांसेस मिले कि वो अपना इम्पैक्ट छोड़ें इस वर्ल्ड कप में. पाकिस्तान के लिए आई थिंक बेस्ट विशेस, गुड लक. द वे दे एक्चुअली पीक इन द स्पेशली इन द लास्ट जो आपके सेमीफाइनल था, उससे पहले मैचेस थे. जब आप पीक करते हैं एंड की तरफ, होपफुली कि हम उसी तरह फिनिश करें इसको. सेमीफाइनल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, और इंग्लैंड ने भी ऑलमोस्ट इसी तरह आई, वो भी स्ट्रगल करके आते एंड पे आके उसने बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला. सो it is going to be a good competition between the two teams, and everybody is watching, everybody is waiting. Indeed. Let's see.
Indeed. शोएब, so मौसम ने भी अपना किरदार अदा किया इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, मगर यहाँ तक पहुँचे हैं। कल हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी सब ने यहाँ पर कि आज जो भी नतीजा हो, जो भी रिजल्ट हो, हमने आज पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान टीम को सेलिब्रेट करना है, प्री में भी और पोस्ट मैच में भी। बिल्कुल करना है। और your dance has gone viral over and over again. बहुत सुबह है। दोपहर हो रही है। मेरी बहुत सुबह ऑफ कोर्स आई गेस। और एसी भी ऐसा चल रहा है, शुक्र है। ये अब ये देखिए, फिर ना कहना पानी चल रही है, देखो। Right. I think overall it has been great journey for both the teams. और ये है कि पाकिस्तान ने हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार पता नहीं क्या होगा, बट here we are in the finals। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान विल गिव द बेस्ट शॉट। और आई होप जो एटमॉस्फेयर भी है उसको भी यही समझे कि एक और मैच हम खेलने जा रहे हैं, ये ना लेके आए कि हम लोग फाइनल्स खेलने जा रहे हैं। फिर वो एक एडिशनल प्रेशर आता है। ये बात ज़हन से निकल सकती है यंग लड़कों के। आई एम जस्ट आस्किंग। उसी में हर बंदे का ना अपना है, इंडिविजुअली आप अपने आप को जो है वो तैयार करते हैं कि यार मैं प्रेशर गेम खेलने जा रहा हूँ, तो मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूँ। मेरा ख्याल है उसमें सिंपल ये होता है कि जो चीज़ें आपको पसंद है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, अगर किसी को जानमाज़ पे बैठना पसंद है, तो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, प्रेशर से आपको दूर लेके जाए, या आपको दोस्तों में बैठना पसंद है, या आप दोस्त किसी को कॉल करते हैं और वो क्रिकेट पे नहीं आपसे बात करता, तो आई गेस कुछ भी ऐसी चीज़ करे बट अवेयर है। लेकिन द डे यू आर गोइंग टू प्ले द फाइनल्स, stay away from everything. I think India अगर फाइनल्स में होती तो things might have been little bit different, the pressure wise. Butterflies probably ज़्यादा होनी थी स्टमक में जो normally होते हैं, और nervousness sometimes is good. Yes. I feel कि आप nervous हो, ठीक है, that's fine because it's a big game. Once you walk on the field, पहला बॉल डिलीवर होगा, it will be just a normal game. And I think इसी तरीके से पाकिस्तानी टीम को भी, कप्तान को भी इसी तरीके से सोचना चाहिए, जैसे मलिक ने कहा कि it's just another game. And if they play to their potential, जो कि इंशाल्लाह आज होगा, we got every chance of winning this. Yeah, we do. The great thing about Pakistani cricket is कि it brings all of us together. और आज सुबह मैं वसीम न्यूज़ चैनल देख रहा था हमारे, हर तरफ इस वक्त जो है वो हंगामा मचा हुआ है और फाइनल की बात हो रही है, तो बड़ी ज़बरदस्त मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारी सिख कम्युनिटी, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पाकिस्तानीज़ हैं, हमारी दूसरी माइनॉरिटीज़ वाले, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, मसाजिद हों, चर्चेज़ हों, वहाँ पर सब लोग कल से पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। इट्स जस्ट ब्रिंगिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर, एंड we do have some challenging times in Pakistan right now, but despite that we're just coming together on this. Yeah, we're going through a rough time as a nation, but this is important. Yes, it is. मेरी बीवी वहाँ से ट्वीट कर रही है, मुझे फ़ोन आया सुबह कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, माई होल फैमिली इज़ गोइंग टू द मैच, दैट आई एम हैप्पी फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल। उन्हें खुशी मिल रही है इधर वे आज जो भी डिसीजन होता है। एंड आई थिंक क्रेडिट टू पाकिस्तान टीम, द वे दे परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर, स्पेशली इंडिया से हार के कम बैक करना, और फिर साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से उन्होंने जीते हैं। उसके बाद आई थिंक वैसे मिसबा ने जब भी कहा है कि दे पीक्ड एट द राइट टाइम। Yes. And our team is quite young compared to other teams. Our average age is about 26 years old in Pakistan team. Absolutely. So before we carry on with the rest of the day, बड़ी एक स्पेशल चीज़ है आज दोस्तों मेरे सामने यहाँ पर रखी हुई है, जो मैं आपकी स्क्रीन पे ये शेयर करना चाहता हूँ। It is an absolute privilege and an honor for me to actually hold these medals in my hand. और Wasim was kind enough to bring these out today. ये 1992 के वर्ल्ड कप के वो मेडल्स हैं जो मैं वसीम भाई को दूंगा ताकि वो क्लोजअप में दिखा सकें, बट मैन ऑफ द मैच and the world champions. This is the 1992 memorabilia that you don't get to see. This is almost like the holy grail of memorabilia for Pakistani cricket history. And thank you, Wasim, for bringing this to the pavilion. Thank you for sharing these with us. And why don't you tell us more about these two medals? Look, what an honor to be. ये जो आपकी आंखें सूजी हुई हैं, मुझे लगता है कि आप रात सारी इनको ढूंढते रहे हैं, गोदामों में फिरते रहे। Exactly. जितने साढ़े अन्य सारे और भी मेडल पे। Yeah, exactly. और मुझे जेजे ने और इमरान ने कहा था कि ढूंढो, मैंने कहा it'll be like finding a needle in a haystack. Exactly. Because
मुझे पता नहीं ये जेट ब्लैक थे जी, पॉलिश तो में। अजमत ने आके ऐसी टूथब्रश ने किसी से पॉलिश किया, मैं दिखाता हूँ। आई थिंक दिस इज टू विन, ये पीछे लिखा हुआ है जी। दिस इज द विनर्स मेडल वर्ल्ड कप का, बोथ साइड्स पे लिखा हुआ है पीछे सारा। And this is, I think, yeah, it's written here. Man of the match, Melbourne, 25th of March, I think, जो भी डेट थी। Yeah. ये वो वाला है। Man of the match, Melbourne, 1992 final. So I How want can the we boys forget? today, our boys, Yeah. to inshallah bring their medals back. Obviously, आजकल के दौर में medal थोड़ा बड़ा होगा, but yeah, this was like they were meant to be gold plated, but obviously not. They're silver now. No, that's just unbelievable. और मेलबर्न की बात हो रही थी, तो इस वक्त हमारे शाहिद हाशमी साहब जो हैं वो मेलबर्न में मौजूद हैं MCG में with the general manager of the MCG. आइए सुनते हैं। Hello, big day. T20 World Cup final between Pakistan and England, and the man in charge of overseeing all the pitch preparation, executive manager of MCG, Michael Salvatore. He's an Italian and looking after the pitch for the final between Pakistan and England. How exciting are you becoming part of the history? Oh, very excited. I've been looking forward to this day the whole tournament, and I think it's going to be a great final. And how's the pitch like? Yeah, we're very happy with it. We've had good weather leading up to the game, so this was a pitch used for Pakistan, India, and it went really well. So yeah. And who do you think will help the pitch? Oh, look, I think it'll be the same as the first time we used to be good cricket wicket for everyone. And a big occasion. And how's the weather? Will weather permit full 40 overs match? At this stage, it is looking positive. They're predicting a lot of rain, but it seems to have passed through. So fingers crossed. I think we should get a full 40 overs in today. Thank you, Michael. ये थे माइकल सैल्वाटोर। ज़बरदस्त वेदर है। दिन का आगाज़ सूरज के साथ हुआ था और थोड़ी देर बाद थोड़े से बादल आ रहे हैं। बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि पूरा फाइनल होगा। रिजर्व डे भी है इसका पीर के दिन, लेकिन अल्लाह करे पूरा मैच हो। और आईसीसी ने पूरी कोशिशें की हैं कि इतवार के दिन ही ये मैच कंप्लीट हो जाए। और जो आधा घंटा डिलेड जब मैच होता है, आधा घंटा जो डेडलाइन होती है उसको बढ़ाकर 90 मिनट कर दिया गया है। तो 90 मिनट से ये कोशिश की जा रही है कि पूरा मैच हो। रिज़र्व डे में मैच गया तो खुदा ना खासा रिज़र्व डे में भी बारिश की पेश गोई, और अगर खुदा ना खासा रिज़र्व डे में भी बारिश हुई तो फिर कंबाइंड चैम्पियन होगा, जैसे 2002 में चैम्पियंस ट्रॉफी का हुआ था भारत और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंका होस्ट था जहां 2 दिन मैच ही नहीं हो सका था। Alright, शाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की है उन्होंने। एंड देयर यू हैव इट, द वेदर अगेन, टेल अस मोर अबाउट MCG. I mean, you and yeah, this was the most exciting CEO I've seen of any ground. He wasn't in his General manager, Italian general manager. अरे 2 दिन से काम इतना किया। अच्छा, he's Italian. Italian technology for cricketing pitches. That's amazing. Yes. MCG is for me, it's one of my. It's in fact, people say Lords, people say maybe Cape Town, Newlands, but MCG for me, Adelaide Oval भी लोग कहते हैं, is the ultimate ground. I mean, the reasons there, winning the World Cup, getting wickets, getting my runs, whatever, but it's just the sheer, उसका जो पूरा when you enter. The grandeur of it. You feel like a tiny little speck. It's so huge. वो जो साउथ स्टैंड है, अभी उन्होंने शेन वॉर्न ने स्टैंड किया है, only 60,000 people sit in that stand. Wow. So and it's beautifully done. But we have not played in No, this we one. played the old MCG. Old MCG. But we commentated, so the facilities are unbelievable. It's just one of the best cricketing grounds in the world, in my opinion. Well, we're going to be seeing a lot of action in that cricketing ground today. लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से वक्फे के बाद, right here on A Sports, 10 Sports and the ARY's app with the Pavilion. All right, there you had Shan Masood there speaking, and he's made a point. बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जो अभी हाल ही में जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई है, तो वर्ल्ड कप जीतने से हम बहुत सी खुशियाँ जो हैं और बहुत सी उम्मीदें इस कौम को जो है वो दोबारा लौटा सकते हैं. सो बेस्ट लक बॉयज इन डूइंग दैट, एंड वेल स्पोकन शान मसूद. सो
Let's get to the cricket. ये end शाम of में the- एक बात ठीक की जी। है कि वर्ल्ड कप जीतने से क्या होता है कि अगली फ्यूचर जनरेशन Inspire. या एक जैसे 92 के बाद हुआ था, अब भी इंशाल्लाह अगर आज जीतते हैं इधर वे फ्यूचर जनरेशंस फॉलो करेंगे अपने Bilkul. players को, अपने I team think को. inspiration enough the fact that we're in the finals. Big deal. Wasim. You have to understand it's a huge deal. 13 साल बाद. Yeah, it's you know, a World Cup it is- final. it is a We are World Cup final. qualified for it. Yeah, that is special. Yeah, You know. very, And very inspiring words and he speaks really well. Yes, he does. Very दूसरा good. जो flood reliefs के वालों के बारे में, flood के बारे में और जो condition of the country, I think he spoke really well about it. And we all need to gel together, as not only as a team के जो मैच खेलने के लिए, as a country, as a nation. I think it's about time कि हम लोग इकट्ठे हों. Political side भी जो हमारे issues चल रहे हैं, I think we need to solve all. yeah, we should settle all those things. Now let's talk about the business end of the World Cup. It is the final and it is England versus Pakistan. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मैच जो है बुनियादी तौर पे वकार वो पाकिस्तान की बॉलिंग और इंग्लैंड की बैटिंग का है. पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे. लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तानी बॉलर. व्हाट आर योर इम्पैक्ट बॉलर्स फॉर टुडेज गेम फ्रॉम पाकिस्तान? To be honest, all of them. I think जब टीम क्लिक की है या पाकिस्तान ने जब उनको नज़र आना शुरू हुआ कि दे कैन qualify for the semis and the finals, everyone chipped in and they all have very good disciplines, they all have very good ideas. और जिस तरीके से बॉलिंग की है डिफरेंट पिचेस, मिसबा ने भी मैनेज अभी उन्होंने बताया ना मिसबा ने कि जी डिफरेंट कंडीशंस में जिस तरीके से बॉलिंग की, सिडनी में डिफरेंट बॉलिंग, मेलबर्न में यू हैव टू कम आउट विद अ डिफरेंट प्लान. सो आई थिंक सो फार execution of plans were just outstanding. I mean, for me, Naseem Shah stands out. I mean, for sure, Shaheen has bowled well. Shaheen has always given us जो breakthrough हमें early on चाहिए होता है. लेकिन जो Naseem Shah इतने बड़े occasion, you know, he was nowhere, suddenly been picked. Excuse me, suddenly been picked, and I think he's going to be the key. The first few overs, new ball, with him and Shaheen more experience. I think he's going to be the key. If he gets it right. The lengthy ball, मुझे ऐसा लगता है कि he'll be very, very handful and he'll be very, very difficult for the England openers. I know they're in good form. Yes. But for them to handle him is gonna take some doing. It is definitely. और नसीम शाह की बात कर रहे थे, he has bowled 42 balls so far in this World Cup, or he only conceded 2 boundaries. I'm talking about 16 to 20 overs. जी. So that's also a plus for Pakistan. और I think वो और शाहीन दोनों ने combined 78 बॉल किए हैं आखिरी 4 ओवरों में और सिर्फ एक छक्का खाया. So that's again a confidence boost for our bowlers. और सबसे ज़्यादा यॉर्कर्स भी पाकिस्तान टीम ने किए हैं in general. अगर देखा जाए तो one of reputed website ने कि 39 यॉर्कर्स हुए हैं in the tournament in Super 12s and that was Pakistan. नंबर 2 पे है इंग्लैंड, उनके भी 26 यॉर्कर्स हैं. So that shows कि early on, especially शाहीन का सबको पता है वो 7 दफ़ा विकेट ले चुके हैं अपने पहले ओवर में T20 फॉर्मेट में. और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आज क्योंकि बटलर और हेल्स 90 का एवरेज है उनका, 361 हम उनकी बात करेंगे. तो इसीलिए हाँ, नहीं हाँ, bowling perspective से fair enough, yes. पाकिस्तान बॉलिंग, तो अगर उनकी विकेट्स ली जाएगी अर्ली ऑन तो ये शोएब आपने पहले भी कहा था कि अगर हम शुरू में दरवाजा खोल लेते हैं, अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर में अगर हम डिसलॉज करते हैं, तो आप इन मिसबा हैव बीन सेइंग दिस, देन गेम ऑन. कॉमन सेंस काइंड ऑफ. और वैसे ही ना आप फिर टोटल को नीचे लेके आएंगे. अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो टोटल नीचे आ जाएगा, वो फिर 180 190 वाला नहीं होगा. लेकिन अगर इनको स्टार्ट मिलेगा अच्छा, जो एमसीजी का है from 2015 onwards, the average score is 159. Right. So that shows it's not a high scoring ground like Sydney and Adelaide. So अब ये सोचना पड़ेगा कि एक तो पिच फ्रेश है जो हमें बताया गया है, तो you just heard the जो भी थे जनरल मैनेजर ऑफ एमसीजी, तूने देखी कहा गया विकेट तक आ छड़े हुए हैं. There will be a it will be good for everyone. Yeah. I mean, he was playing Switzerland. Wasim bhai, इस तरह की pitch पे we all played on that pitch as a bowlers also. You can get carried away at times क्योंकि बॉल आप जब देखते हैं कि अगर बॉल फ्लाई कर रहा है और कीपर यहाँ पकड़ रहा है and suddenly you feel really good about yourself, or that can really damage you because ऐसी पिचों पे जहाँ पे बॉल कैरी कर रहा हो, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके डिसिप्लिन सही हों, क्योंकि डिसिप्लिन अच्छे होंगे
तो देन यू कैन गेट विकेट्स. अदरवाइज सम टाइम क्या होता है कि आप अच्छी बॉलिंग तो कर लेते हो, विकेट्स नहीं मिलती. वो जो पीरियड होता है वो सर्वाइव अगर अगली टीम कर जाए या उनके बैट्समैन उस टाइम सर्वाइव कर जाएं तो वो सम टाइम इट कैन डैमेज यू फॉर लेटर ऑन. तो अर्ली ऑन जो है ना वो डिसिप्लिन जो है ना दैट इज गोइंग टू बी द की फॉर बोथ टीम्स आई गेस. ट्रू, एब्सोल्युटली. नसीम शाह की बात कर रहे थे हम मिसबा, हाउ ही इज रियली इवॉल्व्ड वेरी फास्ट, ही इज मैच्योर्ड रियली फास्ट. क्योंकि हम देखते थे पहले वो ही यूज्ड टू गो आउट फ्लैट आउट and lose his line, lose his length, but now he seems to be a much more composed bowler. I think with experience, obviously exposure जितना आपको मिलता है, शुरू में आप आते हैं तो थोड़ा सा आप घबराए होते हैं, उस तरीके से आपको अपनी बॉलिंग का इतना आइडिया नहीं होता. जैसे जैसे वो खेलता जा रहा है, और स्पेशली उसने लॉन्गर फॉर्मेट से शुरू किया है. टेस्ट मैच जब आप खेल लेते हैं उसमें जब आप बॉलिंग कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है बाकी फॉर्मेट्स में एडजस्ट करते हैं. ज़ाहिर है वहाँ पे आपका डिसिप्लिन जो है वो उसमें आपको बहुत लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है. एंड देन व्हेन यू कम टू शॉर्टर फॉर्मेट्स आपकी हर बॉल उस पर कॉन्फिडेंस होता है आपको. आई थिंक नसीम द वे ही जस्ट बेसिकली इम्प्रूव्ड. आप देखें जब से वाइट बॉल क्रिकेट में वो आया है, कंट्रोल उसका नए बॉल के साथ, और स्पेशली जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि वो एंड पे आके बहुत सेंसिबल बॉलिंग कर रहा है. जो स्लोअर वंस उसने डेवलप किए हैं उसके साथ. व्हेन आई यूज्ड टू स्टे देयर, जब वो मैं कई दफ़ा अंपायरिंग कर रहा होता था तो वो बॉलिंग कर रहा होता था, बहुत मुश्किल है उसका स्लोअर बॉल. और जब वो उस पेस के बाद एक तेज़ गेंद करने के बाद अगला स्लोअर वो बैक ऑफ द हैंड करता है तो ऑलमोस्ट कई दफ़ा बैट्समैन पूरा घूम जाते हैं और गेंद बाद में आता है. तो वो जो एक मैच्योरिटी उसकी बॉलिंग में नज़र आ रही है विद द न्यू बॉल. ऑलवेज वकार भाई ऑलवेज यूज्ड टू से कि ये सेटल हो जाएगा तो वाइट बॉल क्रिकेट में ये नया बॉल इसका खेलना बहुत मुश्किल है. विद दैट काइंड ऑफ एक्शन, पेस और ऑफ द सीम भी उसका गेंद जो है वो हिलता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना. Yeah, it makes him really special. Credit should give to our think tank as well. कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसका रोल और उसको बोला कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम द प्लेयर, बट आई गेस हेड्स ऑफ टू द थिंक टैंक एज वेल. Absolutely. क्लैरिटी दी और बोला कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. The foundation was right. Great to see Shaheen Shah Afridi getting his rhythm back in, looking better, and he has improved. हम तो उनकी इंजरी की बात कर रहे थे और ये बात बार बार हम कर रहे थे कि उनको मैचेस देने चाहिए थे न्यूजीलैंड में या वो भी था, बट आई थिंक ही अंडरस्टूड द प्रेशर दैट ही हैड ऑन हिम एंड ही एक्चुअली वेंट थ्रू both of you can comment on that. मैं आई वॉज द वन हु वाज एम्फसाइज कर रहा था कि जी इसको न्यूजीलैंड में होना चाहिए. एंड आई स्टिल बैक दैट वर्ड्स क्योंकि देखें अगर वो फॉर्म में अगर आया भी है तो आप उसके पहले 2-3 मैच देखेंगे तो ही वाज स्ट्रगलिंग. ही वाजंट रियली गेटिंग द लाइंस एंड लेंथ्स एंड स्विंग वापस नहीं आ रही. तो अगर ये हम वो पहले से अगर इसको तैयार करके लाते न्यूजीलैंड से तो आई थिंक वुड हैव बीन बेटर. बट ये देर आए दुरुस्त आए, बड़ा मैच है. Early on is going to be crucial, and I'm sure he knows what he's doing, or inshallah he will deliver. As a lefty, Wasim, what are you hoping to see from Shaheen today? I think he'll be the same. Yeah. He'll go for the wickets early on. He'll try to hit Butler or Hales probably. दोनों अपना stance थोड़ा open करें शायद इस बॉल के लिए, because वो भी थोड़ा homework करके आए. जब front foot को थोड़ा सा open करते हो तो लेग बिफोर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं आपके पैड पे लगना हो, जिसे कहते हैं ना कैंची नहीं पड़ती. सो आई थिंक दे प्रॉब्ली विल डू दैट. बट नोइंग पता भी हो एज अ बैट्समैन आपको मिसबा, ही इज सच अ ब्रिलियंट बॉलर शाहीन. वो जो लेट स्विंग होता है अगला बॉल वो फिर भी तंग करता है. ये दो स्ट्रेंथ्स का आपस में मैच है बेसिकली. बटलर और हेज दोनों अंदर आते बॉल को फुल लेंथ को बहुत अच्छा खेलते हैं. और टांग पे उनका स्कोरिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त थ्रू मिड विकेट उसके लेग खेलते हैं. और शाहीन की ये स्ट्रेंथ है. नॉर्मली आउट स्विंग अगर वहाँ से हो तो अर्ली ऑन वकार भाई नोज कि हम उसको आगे से बाहर निकालते थे बटलर को. अर्ली ऑन ड्राइविंग लाइन से स्लिप लगती है. आउट स्विंग होती है बट नए गेंद से इतनी नहीं होती. वो उस सीम के साथ जाता है, वॉबली सीम के साथ आउट स्विंग करता है. ऐसे नहीं एंगल बनता है, स्विंग नहीं होता उस तरीके. मेरा क्वेश्चन वसीम भाई और वकार भाई से वो ये है कि जैसे मिसबा भाई ने अभी कहा कि बॉल जो है वो अगर बाहर निकले आगे से जॉश बटलर को तो वो शाहीन की स्ट्रेंथ नहीं है. तो आया उसको अगर आप होते आप अपनी स्ट्रेंथ से हटते या अपनी स्ट्रेंथ पे जाते आप?
स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पे जाता है। पहले You know, you ओवर तो अपनी स्ट्रेंथ पे, जिसके लिए जो मैं मशहूर हूँ, जिसके लिए मैं विकेट लेने जा रहा हूँ, फुल अंदर आता हूँ बॉल, जब उस पर एक दो चौके लग गए, पर उसके लिए फिर इन्हें थोड़ा सा अर्ली ऑन, मिड ऑन और मिड ऑफ थोड़ा सीधा लेना पड़ेगा, बिकॉज यूजली फुल बॉल को हमने देखा, फिन एलन ने भी उसको सीधा चौका मारा वो, और उसके बाद वो आउट हो गया, बट मिड ऑन स्पेशली अच्छा फील्डर और थोड़ा सीधा होना चाहिए। इवन वसीम भाई जो स्क्वायर लेग वाला फील्डर है ना, वो भी थोड़ा सा मोर मिड विकेट होना चाहिए। सो व्हाट यू वांट द बैट्समैन, वो दोनों राइट हैंडर है, दोनों बैट्समैन वो कि इवन इफ दे प्ले वेल अगेंस्ट हिम, यू वांट देम टू प्ले sort of inside. So अगर बॉल स्विंग होता है तो बल्ला बंद जितना होगा उसको कम बल्ले का फेस मिलेगा, तो there is every chance that you might hit the pad or go through to the stump. So stick to your strength early on, and then if it doesn't work, and then you can just sort of pull your length. But I think reverse swing के chances बड़े कम हैं आज, am I right? With this Because weather, of the weather and the square is lush green, ground is lush green. ये जरा स्विंग के बारे में देखते हैं। पावर प्ले के अंदर जो स्विंग के एक हमारे पास एक ग्राफिक अगर आप देखें तो शाहीन इज राइट देयर। सो दिस इज द एवरेज स्विंग इन द पावर प्ले ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप 2022। इसमें स्टोक्स जो है वो सबसे ऊपर है विद 2.2 डिग्री स्विंग। बेन स्टोक्स पहला ओवर उसका अच्छा बाहर निकलता है, शाहीन को ऑब्वियसली यू सीन अंदर आता है, वोक्स इज देयर, तीनों इंग्लैंड के हैं उसके बाद बॉलर्स, स्विंग बॉलर्स, बिकॉज दे आर यूज्ड टू कंडीशन, दे यूज्ड टू स्विंग द बॉल than our the general bowlers of the world, especially in this format. जी भाई, इसमें ओवरऑल ये भी देखा है कि मेलबर्न में जब आप खेलते हो तो स्विंग तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, स्विंग के साथ सीम होता है, दैट इज व्हाई द एवरेज स्कोर इज नॉट दैट हाई। वो इसलिए कि बाउंस है ना, तो उसके साथ अगर तो हवा में हो रहा तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू हैंडल, बट वंस इट हिट्स द सीम एंड इफ इट गोज ऑफ द सीम तो फिर इट्स डिफिकल्ट। जो दो बैट्समैन बैठे हैं, एक्सप्लेन कर देगा व्यूज को कि सीम और स्विंग में क्या फर्क है, बड़े लोग ये पूछते हैं। देखिए होता ये है कि स्विंग तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस तरफ आप सीम को सॉर्ट ऑफ ट्रैवल करवाएंगे, बॉल उस तरफ ट्रैवल करेगा विद सॉर्ट ऑफ अ बैक स्पिन जो होता है आपका रिस्ट से करते हो। सीम का ये होता है कि अगर तो वो हवा में स्विंग हो रहा है और पड़ने के बाद भी कट हो रहा है ना, और देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन दिस सॉर्ट ऑफ सरफेस, क्योंकि जहाँ पे बॉल पड़ने के बाद वो कहते हैं ना जुप करके निकलता है, तो वो उतना टाइम नहीं आपको देता, तो आइदर यू प्ले शॉर्ट और यू सर्वाइव। उसके लिए लेंथ क्रूशल होती है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी पिचों पे आप यू कैन गेट कैरिड अवे विद द बाउंस एंड ऑल दैट, सो डिसिप्लिन्स आर गोना बी वेरी वेरी क्रूशल। सो मेक श्योर यू लैंड ऑन द सीम, विच आर बॉलर्स डू, स्पेशली नसीम एंड शाहीन, बोथ ऑफ देम दे लुक टू लैंड द बॉल ऑन द सीम। आई थिंक अगर उनका अर्ली ऑन सही जगह पे गिरा, इट डजंट मैटर हाउ गुड अ फॉर्म यू आर इन, you will have trouble. असल में बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंपल सी चीज़ है कि आप जब स्विंग खेलते हैं वो आप 20 यार्ड से खेल रहे होते हैं, जब हाथ से निकलता है तो थोड़ा बहुत, अगर रिवर्स हो रहा है तो वो लेट होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर कन्वेंशनल स्विंग है तो हाथ से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है, निकलते ही बॉल बहुत जल्दी वो किसी ना किसी तरफ जाता है तो आप पिक कर लेते हैं। सीम बेसिकली 5 मीटर है या 6 मीटर है, उस लेंथ से 5 मीटर में आपने अगर वो डिविएट करेगा तो आपको डिसीजन का टाइम ही नहीं है। ज़ाहिर है आपने लाइन देखी है उसकी और आपने एक सोचा कि गेंद इधर आएगा, इधर फिनिश करेगा, आप उस तरफ 5 मीटर पे जब टिप अप उसका लगता है, बाउंस होता है बॉल, तो आप ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं। उसके बाद अगर वो किसी तरफ भी मूव करता है तो वो जो बल्ला है उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है कि आप उसको जो है वो कॉम्पनसेट कर सकें, उसको एडजस्ट करेंगे उस टाइम पे, टाइम ही नहीं आपके पास। इसीलिए लीथल है क्योंकि उसका वो आगे फेंकता है, उसका बॉल लेट होता है, जैसे रिवर्स होता है, रिवर्स की तरह होता है, एकदम बिल्कुल करीब आके पड़ने के बाद अगर थोड़ा और जुप करके आए तो फिर वो कट और मुश्किल। ये एक और ग्राफिक आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। ये मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं उनके अंदर स्विंग का क्या है, एवरेज स्विंग इन पावर प्ले, और इसमें आप देख सकते हैं कि मेलबर्न इज राइट ऑन टॉप देयर। मेलबर्न इज वे अप देयर। आई मीन अगर इसी तरह की पिच हुई जो हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप देखी है मेलबर्न में, तो देन इट विल बी अ मैच ऑफ गुड फास्ट बॉलिंग। इट विल बी हम देखेंगे कि अच्छे बॉलर जो होंगे, जो डिसिप्लिन बॉलर होंगे, दे विल ट्रबल बैट्समैन। ऐसी विकेट पे जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, ऐसी विकेट पे आपके ख्याल में इंग्लैंड के बॉलर्स थोड़े यूज़फुल नहीं होंगे ज़्यादा, बिकॉज उनको आइडिया है हाउ टू बॉल ऑन सीमिंग ट्रैक्स? वसीम भाई हमारे भी बहुत अच्छी फॉर्म में है और एज वी हैव बीन डिस्कसिंग के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। सिर्फ एक चीज़ है
जो हमारे ओपनर्स का वे ऑफ प्लेइंग है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंग्लिश ओपनर्स। तो सिर्फ एक ये चीज़ हो सकती है कि वो शायद अटैक करें आपको, शायद अटैक करें, उसमें एज वकार भाई सेड कि वो वहाँ से हिलना नहीं है, वहीं रहे, अगर एक आधी बाउंड्री लग भी जाए तो वहाँ से हिले नहीं, वहीं से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं विकेट लेने का। Yeah, that's a good point. बैट्समैन विल बी आल्सो अंडर ह्यूज प्रेशर। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ यहाँ पे स्ट्रगल किया, वो उनको भी आसान नहीं था यहाँ पे इन कंडीशंस में, तो आई थिंक उन पे भी प्रेशर होगा, स्पेशली उनके ओपनर अच्छी फॉर्म में है। उसके अलावा कम आई है, आई नहीं है, 150 है मेरे ख्याल में, बल्कि 50 भी नहीं है, शायद स्टोक्स ने 42 किया है, 40 और कुछ किया था, नीचे ब्रोक्स, वो जितने भी उनके बैट्समैन हैं वो उन्होंने कोई ऐसी इनिंग नहीं हो, बड़ी फंस के उनकी बारियां हुई हैं, कोई एज सच वो इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है। और नॉर्मली जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है, अगर अच्छी पिच हो तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो 200 प्लस वाली टीम बन जाती है। करेक्ट। और पिच अगर थोड़ी सी इस किस्म की है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनकी जो डिपेंडेंट वो कर रहे हैं वो ओपनर्स पे कर रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की। इस मौके पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शंस की और पाकिस्तान की बल्लेबाजी के हवाले से। देखते रहिए द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप। विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and it's the big day. It's the finals. Pakistan versus England. ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स के हवाले से, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शंस के हवाले से। शोएब, how do you see our spin department right now, and how do you think कि बाबर आजम कैसे डिप्लॉय करेंगे आज के हमारे स्पिन ऑप्शंस आज? If you look at Shadab Khan, he's been excellent. Yep. Or I guess I hope he'll do the same today as well, inshallah. Or Nawaz hasn't bowled much, लेकिन वो conditions देख रहे हैं। ये शादाब जो हैं, इनकी लेंथ बहुत अच्छी है और रिदम बहुत नज़र आ रहा है। जहाँ पे गुगली गिराना चाह रहे हैं वहीं गिर रहा है, जहाँ पे लेग स्पिन करना चाह रहे हैं वहीं हो रही है। और 2-3 टाइप की, बहुत अच्छा कैच था ये 2-3 टाइप की गुगली करते हैं जी, और बहुत जगह पे गिर रही है। सम टाइम आपको ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई आपकी ऐसी जो मिस्ट्री डिलीवरी है, लेकिन ओवरऑल व्हाट वी हैव सीन इन दिस वर्ल्ड कप, ही इज बीन लाइक bowling exceptionally well. Probably if Pakistan does well today, he probably could be the man of the tournament. Yes, Yeah, yes. inshallah, he will be, inshallah. और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ऊपर से 2-3 आउट हुए हों, सेट बैट्समैन इनके सामने ना आए। और वैसे ही इंग्लिश टीम जो है वो उनकी मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रही है, और आई एम श्योर आज वो देखेंगे, असेस करेंगे बाबर, अगर नवाज की ज़रूरत पड़ी वो भी हैं, इफ्तिखार हैं, ही इज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल। तो आई गेस असेसिंग द कंडीशंस, सिचुएशन, और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करवाएं इनसे। या बिल्कुल। मिस एनीथिंग you'd like to add to that for the spin? नहीं, मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं कि आपकी सारी बॉलिंग ऑप्शंस जो हैं, तीनों स्पिनर्स ने बॉलिंग की हुई है। और नवाज़ पहले मैच के बाद उसने जहाँ भी बॉलिंग की है उसने अच्छी बॉलिंग की है। इवन सेमीफाइनल में आई थिंक की विकेट थी फिलिप्स की, उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया होगा, उसके बाद उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ओवरऑल आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का, और ओवरऑल जब 4 फास्ट बॉलर हमारे खेल रहे हैं तो कप्तान को वैसे ही बहुत ऑप्शंस हैं। आप अपनी विल पे जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप स्पिनर को यूज़ करते हैं और वो आपके अटैकिंग ऑप्शन बनते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है पाकिस्तान टीम की इस टाइम। कोई भी ये नहीं हो रहा कि ये इसके ओवर निकलवा लूँ, इसके ओवर, दैट इज़ समथिंग विच ऑलवेज गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एडवांटेज एज अ कैप्टन। कोई डिफेंसिव मूव नहीं होती आपकी बॉलिंग में, अटैकिंग बॉलर है सारे, विकेट टेकिंग। राइट, इस वक्त शादाब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सुनते हैं। Shadab Khan, thanks for joining us. Just over your left shoulder, I can see the flag getting stuck into the ground. It's been at every game. Who started that? Bismillahirrahmanirrahim. Sakib started that when he came. He wanted to give us importance of our flag. So every time where we go, we carry that, and we will put a ground when we do practice as well, when we play a game. So before everything, we put that. First T20 World Cup final for you. How are you feeling? I'm very excited because it's first. Last year we didn't. We finished. We lost a game in semi-final, but now we are one more game to go. So I'm very excited, and I want to just enjoy the game.
And building nicely, you lose the first 2 games and then all of a sudden win after win after win. Is Pakistan close to its best cricket? Definitely, because in T20 is a momentum game, and on a right time we peak of the momentum, and that's very important for us because we lose first game, but after that we have a knockout stage every time, so where we play. So it's important for us as well because we get that much pressure, so now it's better relax as well. I know you like your analysis of opposition players as well. How much do you do coming into a game? Definitely I do on myself because I believe on that, so I always do on opposition. It's not full yet. It's probably only about 10% in, but it's already feeling very much in favour of Pakistan. Are you sensing that? Definitely. Where we go, they support us, especially Pakistani fans, because they put faith on us after this, after 2 losses, but still against the Netherlands, the crowd was there and they support everywhere we go. So they are our 12th man, so we want to give them back as well. Well, we've loved watching you this tournament. Have a wonderful night tonight. Thank you so much. There, beaming Shadab Khan there, looking very confident. Very confident, very relaxed. Yes. That's a good sign always. If you're relaxed as a cricketer, as a player before the big day as a team. Like I said, it's a huge moment. It's a huge for moment. every player who's in this squad. It's a huge I moment. have always seen him relaxed, calm, composure. This is why I guess he's been very consistent. Very consistent. और बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिशन है ये जो झंडा गाड़ा जाता है हर मैदान में जाके प्रैक्टिस का सेशन हो या मैच शुरू होने से पहले जाके पाकिस्तान टीम जो है वो ये देखें झंडा जो है वो जा रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वसीम जूनियर लेके जा रहे हैं इसको जी ये सकलैन का आइडिया था एंड दैट्स व्हाट दे डू इट ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस आल्सो एंड इट्स गुड इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट who we playing for and what is at stake और you know I'm so proud of the boys कि जिस तरीके से उन्होंने इस झंडे की अभी तक शान रखी है आन रखी है और इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे Yeah, absolutely. And now let's talk about the Pakistani batting. Because हम इस पिच पे हमने देख लिया है कि पिच फ्रेश है पिच में थोड़ी सी स्पाइसी भी हो सकती है the word that you use थोड़ा सा मसाला भी मौजूद है तो इस पिच पे रन्स कैसे करने हैं Yeah, go on batsman. Let's start with you, Misbah. बल्ले से हाँ? बल्ले से अच्छा थैंक यू बल्ला मिस्बा गेंद लगना भी चाहिए। चले फिर एक मिनट लगेगा, रुकिए। I think- इसके ऊपर मजीद बात करते हैं I ना? think- एक मिनट इस पे मजीद बात करते हैं पहले जरा पिच पे नजर डाल ही लेते हैं लेट्स टेक अ लुक एट द पिच रिपोर्ट brought to you by Ensure Well, what a great amphitheatre this place is. The perfect setting for a final. Hopefully the Melbourne weather and the rain will stay away because we've got a decent pitch by the looks of it. And also, it's a pitch that's fairly central at the MCG. Bowling from the members' end, there is definitely a slightly shorter hit leg side. That's 75 metres. It is 81 metres on the offside. And that's why sides come here and bowl pretty short. The seamers bowl short here to get the batters hitting square of the wicket. But also remember, this ground does swing. So up front with that new ball, you want to pitch it up and you want to get it swinging as well. Now, someone that knows about banging it in and someone that knows about pitching it up and swinging, Ian Bishop, what do you make of this one? Naz, look, it looks exactly as you said. Don't go away. I want to come back to you in a minute. But first of all, let me go down here. There are these nice little dry grass areas on this surface, but there are these little green patches. When India played Zimbabwe, there was probably less greenery. But when India played Pakistan, there was a touch more. So just a little disparity. It's very, very hard. So that's where you want to use that short ball because at one stage it had more bounce in this surface than any other pitch in the tournament. Look at this though, swing. It swung more in the power play here than any other ground in this men's ICC T20 World Cup. 1.8 degrees. Then you talk about some of the bowlers who are performing here today, Shaheen, Stokes, Wokes and Curran. They have swung the ball in the power play, some more than others. So if you pitch the ball up, you get reward, Nasser. Stick to your strength in that power play. Don't go halfway down. But that bounce and those square boundaries later on, do that. But what I want to ask you is, what do you do if you win the toss? Overhead conditions, very gloomy. Well, I think this ground tells you that it's a chasing ground. 6 of the last 8 times here, the side chasing has won the game. And also with a bit of rain around, maybe Duckworth, Lewis Stern, maybe you think, although it did stuff England in that Ireland game, but Mark Wood was very honest in that Ireland game when I interviewed him. He said they went to the short plan
too early. They should have started with the pitch-up swing plan. It's a good pitch. I don't think the toss is vital. It's set up absolutely perfect. Bowling attack of Pakistan, best in the tournament. Batting lineup of England, best in the tournament. Brilliant matchup. बेहतरीन पिच रिपोर्ट आई आज और वकार इंटरेस्टिंग बट you had observations, they confirmed those observations over there. मिसबा मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट जो हम इंडिया के अगेंस्ट मैच खेले हैं, आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट स्टिल वी मैनेज टू स्कोर अराउंड 160. सो आई थिंक दैट गिव्स बेसिकली बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा पाकिस्तान को। अब आपके ओपनर्स ने भी रन्स किए हैं, फिर नंबर 3 पे हारिस भी आके रन्स कर रहा है, शान ने रन्स किए हुए हैं, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में उसकी कमी नहीं है इस टाइम पाकिस्तान टीम में। नो डाउट नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 6 ओवर्स की होंगे, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाबर की और रिजवान की। इफ़ दे गिव अस अ गुड स्टार्ट, वो अर्ली जो स्विंग है उसको अगर ये नेगेट करते हैं, उसमें से निकलते हैं, देन आई थिंक वी हैव फेयर चांस टू स्कोर 160 प्लस। सेकंड क्वेश्चन, इसको फॉलो अप करता हूँ आपके क्वेश्चन को कि अब पिच का पता लग गया है, जो भी हमें यहाँ से ये पिच जरा देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसका क्लोजअप भी देख लेते हैं वसीम, एंड यू कैन टॉक अबाउट इट। इट लुक्स बताया, घास तो देखो हरी हरी ग्रीन पैचेस नजर आ रहे हैं, बट लेंथ बैक ऑफ अ लेंथ स्लाइटली ड्रायर, बट स्टिल इट्स अ quite a bit of grass if you're coming playing in cricket in Pakistan, फिर वहाँ जाओ तो आपको ये लगती है घास है और बाउंसेस पे इंडिया वाले मैच से कम है, that's what he उससे said, बेहतर होगी। बट so इस pitch पे with rain around, I suppose what should teams be doing after winning the toss? I guess फाइनल है आज, एक रेन, दूसरी ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं उसको पीछे छोड़ना चाहिए। आज ये देखना चाहिए हमारी टीम की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ये मुझे ये समझ आती है। इन दिस टूर्नामेंट वी हैव सीन दिस बॉलिंग, सो यू मीन डिफेंड, बट जो बता रही है टीमें जो ज़्यादा जीती हैं इस वर्ल्ड कप में, वो चेज वाली जीती हैं। इसीलिए वसीम में आज स्टैट्स, ये सारी चीज़ें, मैचअप्स अच्छी चीज़ है, एग्जीक्यूशन उससे फ़ायदा होता है, लेकिन ये जो स्टैट्स हैं, जब बात आ जाती है बारिश या यहाँ किसने पहले बैटिंग की या सेकंड की, वो क्या रेशो है, कौन ज़्यादा जीता है, तो आई गेस वो पीछे छोड़ना चाहिए। आज वो टाइम नहीं है कि आप बहुत सारा ना कंफ्यूज करें अपने उसको। जस्ट प्ले जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पे। टॉस ऑफ कोर्स वो आपके हाथ में नहीं है, एंड डोंट इवन थिंक अबाउट द टॉस, जस्ट स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स, गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर टुडे। यू नो, आप पिछले मैच में भी मैंने यही कहा था कि यू नो आप जो भी करें टॉस को ना सोचें। अगर टॉस का आप सोचने पड़ गए जी इसमें क्या करें क्या ना करें, तो यू आर, मलिक से यू आर कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। सो यू गो टू प्ले योर बेस्ट क्रिकेट एंड मेक श्योर योर एग्जीक्यूट योर प्लान्स, और जो भी आप करते हैं। पिच लुक्स डिसेंट, आई मीन मुझे ऐसा नहीं लगा कि जी को बहुत ज़्यादा घास है और बहुत ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम होएगी। इट इज़ गोना बी बाउंसी हार्ड पिच, बट ये यू गॉट टू मैनेज। ये नासिर हुसैन ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की कि मार्कवुड का जब वो आयरलैंड वाले मैच के बाद इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमसे एक गलती हो गई थी कि हम बहुत जल्दी लेंथ बॉल पे और शॉर्ट बॉल पे चले गए थे, और स्क्वायर बाउंड्रीज केम इनटू प्ले ऑन दैट ओकेजन। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वकार भाई ने पहले कहा है कि आपने नए बॉल को यूटिलाइज़ करना, और आप पहले ही अगर शॉर्ट बॉल पे चले गए हैं, पावर प्ले के बाद आपको ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट बॉल पे आउट करने के, क्योंकि ज़्यादा फील्डर्स हैं आपके, फाइन लेग पीछे, स्केयर लेग पीछे है, तो आपके ज़्यादा फील्डर बाहर हैं, तो आप शॉर्ट बॉल पे आउट कर सकते हैं। पावर प्ले में अर्ली ऑन स्विंग भी हमने देखा कि स्विंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, थोड़ा सा आगे गेंद करें, आगे से आउट करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में जो टॉस की बात हो रही है, मुझे लगता है रेडी होना चाहिए आपको, ये ना सोचें कि पहले हमने बॉलिंग करनी है तो उस पर ही हम पक्के हो जाएं। बिल्कुल, हम हर चीज़ के लिए पहले बैटिंग के लिए भी तैयार हों, बॉलिंग के लिए, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट करें कंडीशंस को। ओवरकास्ट है सारा कुछ, बिल्कुल सिंपल रखिए। अगर टॉस जीते तो बॉलिंग करें, अगर बैटिंग आ जाती है फाइन, ओके, कोई मसला नहीं। आप बहुत मेजर चीज़ है, वो पाकिस्तान टीम की फेवर में जा सकती है, उनके ओपनर्स की विकेट्स लेना। वो एक ऐसी चीज़ है कि वो जो है ना, देन यूर ऑलवेज इन द गेम। ऐसा नहीं होगा कि आप 20 ओवर्स के बाद या 25 ओवर्स के बाद यूर आउट ऑफ द गेम, यूर ऑलवेज इन द गेम।
40 ओवर जब तक पूरे नहीं हो जाते, सो द गोल हैज टू बी टू टेक द विकेट्स। भी बॉलिंग की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, द बेस्ट सो फार पेस बॉलिंग में बताया गया। शादाब हैज़ बीन द बेस्ट स्पिनर सो फार इन दिस वर्ल्ड कप। कि 16 में से 15 टीमों ने इस वर्ल्ड कप में पहले 6 ओवरों में स्पिन 1 ओवर कम से कम स्पिन का हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से हमने अब एक भी यूज़ नहीं किया सारे मैचेस में, फर्स्ट 6 पावर प्ले में। और इंग्लैंड के ये दोनों जो ओपनर हैं, बटलर और हेल्स, वो उनका स्ट्राइक रेट इतना ख़ास नहीं है स्पिन के खिलाफ। दे डू एंजॉय बॉल कमिंग ऑन द बैट द वे दे बैट, सो आई थिंक टुडे कुड बी द डे वे दे कैन ट्राई अ स्पिनर। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक स्टैट पढ़ सकता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त मेरा। मैं ही जिस तरह सारे पढ़ रहे हैं ना, एक स्टैट है यहाँ पे जो बात चल रही है उसी के है कि जब नहीं ऊपर ही लिखा हो, वो ये है कि जब सॉरी विकी भाई, उन्होंने वेट की था कि केड़ा रह गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट, क्योंकि जिन्होंने इंग्लैंड अगेंस्ट अफगानिस्तान ना, दे वर ओनली चेजिंग 112। यस, ठीक है ना। तो जब उनकी अर्ली ऑन विकेटें जब गिरी थी तो दे थरथल्ली पड़ गई थी। तो 113 रन उन्होंने किया था ऑल इन द 19th ओवर। सो दैट मीन्स के दैट रियली क्लियरली शोज के जब अब तो ये तो फाइनल है ना, तो ये और बड़ा प्रेशर वाला मैच है। तो अगर आपने उनके अर्ली ऑन आउट कर लिए तो जो इंग्लैंड बात करती है ना स्टाइल ऑफ प्ले और लुकिंग फॉर दोज बिग शॉट्स एंड यू नो बिग हिटर्स, they will be tested. Right, and with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY's app. We're going to bring you the coverage of the finals momentarily. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरान, आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports, and the ARY's app. And our coverage of the ICC Men's T20 World Cup Finals today from Melbourne. ताज़ा तरीन खबर मेलबर्न से कुछ इस तरीके से है कि सूरज निकल आया है और बारिश के इम्कानात मजीद परसेंटेज जो है वो कम हो गई है। प्लेइंग कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अबर आलूद तो नहीं है? नहीं, मैं तो करा ली है फ्लाइट जनाब, कल की मेरी तो फ्लाइट है इंशाल्लाह। सो या वसीम, टेल अस मोर अबाउट दीज प्लेइंग कंडीशंस। या बहुत सारे क्रिकेट लवर्स व्यूअर्स स्पेशली इन पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड, आई मीन पता तो होगा आईसीसी ने अब उन्होंने जो फाइनल के लिए उन्होंने बनाया है, मेरे सामने है प्लेइंग कंडीशंस। अ मिनिमम ऑफ 10 overs per side must be completed to constitute a match subject to result not being achieved earlier. पहले 5 थे, अब 10 ओवर हो गए हैं फाइनल के लिए। अगर weather results in the final day not being completed today, it will resume tomorrow at 3 PM Australian time. फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि पूरी एफर्ट की जाएगी कि मैच आज ही ख़त्म हो। अगर ये मैच ख़त्म होता है, फॉर इंस्टेंस 11 ओवर एक टीम ने बैटिंग की है और बारिश आ जाती है, तो कल दोपहर ऑस्ट्रेलियन टाइम पे जब शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा, नया मैच शुरू नहीं होगा। सो इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ टीम हु बैट्स फर्स्ट। अगर बारिश आ जाती है, उनको पता नहीं हो कितना टोटल करना है, अगर 2 विकेटें गिर गई, वो इनिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, पता लगा बारिश हो गई है तो कल 9 ओवर आके उनको दोबारा खेलने पड़ेंगे। सो फार मोटा यही है। देयर 30 minutes ऑफ एक्स्ट्रा टाइम एलोकेटेड फॉर द फाइनल एज वेल। सो पूरी कोशिश आईसीसी की कि मैच आज हो जाए। किसी तरह 90 मिनट्स ना, नहीं 90 मिनट्स तो डिलेड स्टार्ट का, 30 मिनट एक्स्ट्रा जनरल एक्स्ट्रा जो है 30 मिनट्स है वो उन्होंने जो रखा है ताकि आज जो है वो रिजल्ट जो है वो किसी तरीके से आए। पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ चलते हैं वापस। मिसबा, मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा था, सॉरी हम पिच रिपोर्ट पे उस वक्त चले गए थे। सबसे खुशखबरी की बात तो ये है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है एक दफ़ा फिर सेमीफाइनल में क्रिटिकल स्टेज पे क्लिक कर गई और एक मोमेंटम मिल गया उन दोनों को, कॉन्फिडेंस लेवल भी दोनों का ऊपर अब। बिल्कुल, मैं यही बात पहले भी हो रही थी कि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए, स्पेशली जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं विदाउट जो मेन बैटर्स के जो स्कोर नहीं कर रहे थे और सडनली वो सेमीफाइनल में इस किस्म की इनिंग्स खेलते हैं, देन वो जो आपके पीछे आने वाली बैटिंग लाइनअप है वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आई थिंक पाकिस्तान बड़ा इस टाइम कॉन्फिडेंट होगा बैटिंग डिपार्टमेंट में भी, और ओवरऑल जो आपकी लोअर ऑर्डर है उनको भी एक चीज़ नज़र आ गई कि हम अब एक कंप्लीट बैटिंग लाइनअप हैं। तो साथ के साथ इवन जो आपके ऑलराउंडर्स हैं उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली है, नवाज़ ने भी कंट्रीब्यूशंस की हैं, शादाब बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, उसके बाद शान मसूद ने रन्स किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स इफ्तिखार ने खेली हुई हैं, हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशंस की हैं, एंड नाउ बाबर एंड रिजवान इन गुड फॉर्म। आई थिंक वी आल्सो हैव टू बी केयरफुल अगेंस्ट आदिल रशीद
बिल्कुल मेरे ख्याल में बड़े मैचअप्स हैं, उन्होंने बड़े पाकिस्तान को तंग भी किया है और रिसेंटली पाकिस्तान को थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है एंड पिकिंग द गुगलीज, तो वो इवन बाबर के अगेंस्ट उनके स्टार्ट हैं, उन्होंने आउट किया उनको। या बाबर ये स्टैट हैं 85 रन्स किए हैं 87 गेंदों पे, 8 डिसमिसल्स हैं, एवरेज ऑफ 10.62 एंड स्ट्राइक रेट 97 अगेंस्ट द गुगलीज। बट ऑब्वियसली कंडीशंस यहाँ पे डिफरेंट हैं। मैं अगर इन कंडीशंस को देखूँ और इंग्लैंड की इस बॉलिंग लाइनअप को देखूँ और अगर यहाँ पे अर्ली ऑन हमें लगता है कि फास्ट बॉलर्स का और बाद में भी कुछ सीम हो रहा है, इस किस्म की सिचुएशन है, for somehow you have to target the spinners like we did against India। आप अगर उसको भी 4 ओवर खेलने चले जाएंगे कि ठीक है आराम से खेल लें, तो then you are basically behind the game। आपको कहीं ना कहीं जैसे इंडियन स्पिनर्स पर अटैक किया आपने और उन्होंने हमारे स्पिनर्स पर अटैक किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टारगेट करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में। ऑब्वियसली अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है और आपकी सिचुएशन ठीक है दैन इट्स डिफरेंट बॉल गेम, बट अगर सीम हो रहा है, फास्ट बॉल मुश्किल है, तो मुझे लगता है अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। इस पे इंडिविजुअल प्लान्स होने चाहिए एज अ बैटर, मुझे ये लगता है। अगर आपको स्पिन के अगेंस्ट आप इजी फील करते हैं और आपको ये लगता है कि आप उसको यू वांट टू टेक हिम ऑन, ओके। लेकिन अगर किसी को पेस के अगेंस्ट वो इजी है, कोई बैटर जैसे बाबर है उसको कंफर्टेबल होता है पेस के अगेंस्ट, तो प्ले योर गेम। तो आई गेस एक प्लान ज़रूर हो, लेकिन इंडिविजुअल प्लान होना चाहिए कि अगर मुझे यार उस पर्टिकुलर डे पे अगर स्पिन इजी लग रही है तो स्पिन को अटैक करें, और अगर आपको पेस इजी लग रही है तो उसको अटैक करें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये अभी जो हमने पिच देखी, जो कंडीशंस हम देख रहे हैं कि ओवरकास्ट है, स्विंग सबसे ज़्यादा होता है मेलबर्न में, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ जाती है, तो इस पावर प्ले को हमें कैसे टैकल करना चाहिए? बिकॉज इंग्लैंड बॉलर जो है उस स्विंग में बड़ा अबूर रखते हैं, तो हम क्या करें? डू वी हम विकेटें बचा के रखें और पावर प्ले को जो है वो निकालें किसी तरीके से, या हम पावर प्ले की यूटिलिटी के को चेस करेंगे यार हमने मैक्सिमम स्कोर नहीं है इसके अंदर? देखिए जिस तरह पाकिस्तान का पेस अटैक है अगेंस्ट बेस्ट बैट्समैन जो भी हम लोगों ने देखे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ये सेम गोज फॉर ऑपोजिशन एज वेल। ओके, पाकिस्तान के भी जो है अगर बाबर को देखें, इज़ अ क्लास प्लेयर, और रिजवान जो है वो नंबर 1 रैंकिंग में बहुत सारा टाइम रहे हैं, सो दे बोथ हैव बीन परफॉर्मिंग। कुछ ऐसी चीज़ ना करें कि अपनी गेम से हट के खेलें, वो नहीं करने चाहिए। जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उसी पे रहें। अगर बॉल स्विंग भी हो रहा है, वी हैव सीन बाबर हिटिंग अलोंग द ग्राउंड शॉट्स, और वी हैव सीन रिजवान हिटिंग बाउंड्रीज, जो भी उनके पेट शॉट्स हैं। अभी ये लास्ट इनिंग में हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे 2 कट शॉट्स खेले, और ट्रेंट बोल्ट और टिम सऊदी दे नोन टू बोल लाइक गुड स्विंग बॉलिंग अर्ली ऑन, एंड वी हैव सीन, देखें ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये रिजवान और बाबर ने बहुत अच्छा जो है स्टार्ट दिया था। तो स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें कि हम थोड़ा सा हट जाएं अपनी चीज़ों से, बस अपना गेम खेलें और विकेट ना जाने दें, ताकि इंग्लैंड मजबूर हो जाए उस चीज़ पे कि यार हमें इनको कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बजाय आप विकेट्स अर्ली ऑन दे दें और वो ये सोचेंगे यार किसी तरह सम हाउ लेट्स जस्ट गेट टू 120 130, तो वो ना सिनारियो आए। विकेट्स होंगी तो आई एम श्योर, और वो ऐसा मैच खेलते हैं आपके साथ कि उनके फील्डर्स भी जो है वो 30 यार्ड सर्कल से आ रहे होते हैं, सो दे प्रेफर टेकिंग अ सिंगल, वो बाउंड्री नहीं आपको देना चाहते। सो असेस इट and don't give early wickets। तो इनको वो ना कह दिया जाए कि खुल के खेलते, लंबा खेल। मतलब it's kind of message, if as a coach if you give this message to batsman, he's saying hang on a minute, what does that even mean? वसीम भाई, उनको मैसेज की जरूरत नहीं है बाबर आजम को, रिजवान को, and they have been performing, और I'm sure सकलैन भाई या यूसुफ भाई या जो भी थिंक टैंक है वो उनको बैक करते हैं, और आई गेस यही मैनेजमेंट का टाइम। वकार, सॉरी यू वांटेड टू से? दोनों टीमें जो ना सेमीफाइनल्स डिफरेंट कंडीशंस में खेल के आई हैं। यू नो इंग्लैंड खेल के आई है एडलेड में, पाकिस्तान सिडनी में खेल के आई है, द कंडीशंस वर टोटली डिफरेंट। पिचेस, उन पिचेस पर इतना बाउंस नहीं था, यू नो, इजी टू बैट ऑन। इस पिच पे थोड़ा बाउंस होगा। तो जो मैंने असेस किया है ओवर द पीरियड ये सारे वर्ल्ड कप में कि मेलबर्न की पिच पे जब आप पुल मारने जाते हैं ना, दैट्स व्हेन यू स्ट्रगल, राइट। यू नो, अगर आप अपनी पाकिस्तान की पहले भी देखेंगे उठा के, तो जो हमारे बैट्समैन हैं जिन्होंने दे लुक टू पुल, आइदर दे पीछे पे कैच हुआ है उनका या मिड विकेट पे कैच हुआ है। सो आई थिंक द मोस्ट डेंजरस शॉट, आई डोंट नो मिस कैन टेल बेटर, बट मोस्ट डेंजरस शॉट अर्ली ऑन
is that pull shot. Cut shot, I still feel that it's very much on. You don't let that go. If it's there, just go for it. Attack आपको ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन just be little watchful कि जब आप when you're looking to pull the ball. बिल्कुल, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते पुल को. वो प्रॉबली आपको लग रहा होता है कि बॉल यहाँ है, बट वो कहीं थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और पेस का भी बॉल ऐसे जा रहा है. बिल्कुल, हमारे यहाँ ऐसे आता है तो ऐसे ही रहता है. ये मेलबर्न की पिच पे या पर्थ की पिच पे देखे कि बॉल जस्ट कीप्स ऑन फ्लाइंग. भाई इसके लिए फिर ये है कि यू हैव टू गेट इनसाइड द लाइन. अगर आप यहाँ से आप पुल मारेंगे ना, दैट मींस दैट स्टीप बाउंस विल जस्ट वो खड़ी हो जाएगी, रॉकेट या थर्ड मैन पे भी कैच होने का चांस है. जैसे आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव वो बिल्कुल ही इधर चले जाते हैं, बॉल को इधर ला के वो पेस को यूज़ करते हैं सिर्फ अंदर. वो टॉप एज भी लगता है तो वो फाइन लेग के ऊपर से कीपर के ऊपर से छिक्का हो जाता है. तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे मेलबर्न में. आप वकार भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर बॉल यहाँ पे है तो उसको जब आप मारने जाएंगे ऊपर वाले बॉल को तो वो मुश्किल हो जाता है. आप उसकी बजाय कोशिश करें, हल्का सा आपको विड्थ मिलती है तो वो पॉइंट के ऊपर से या आप इस तरफ को खेलते हैं उसको. और हाँ, बॉडी के अंदर अगर कोई बॉल इधर आता है तो देन उसको बस पेस के साथ आपने वो जैसे कहते हैं टक्कर नहीं मारनी बॉल को, उस पेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, उसको सिर्फ डायरेक्शन देनी. जैसे मैं करता था जी ऐसे करके. हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं लेकिन वो मेलबर्न में आपके रन हैं, ऐसा तो मत बोलें. वो मूव बहुत लेट करता है, इसीलिए क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल करता है पहले बॉलर को कि आप मुझे यहाँ बॉल करो. अगर मैंने एक बॉल आपको पहले यहाँ चौका मारा था, आप यहाँ करोगे. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और दूसरा, हर बैट्समैन डिफरेंट है. किसी के हाथ तेज़ चलते हैं और किसी के स्लो चलते हैं. एज वकार भाई सेड कि जिनके हाथ तेज़ चलते हैं वो लेट अंदर घुस के भी तेज, क्योंकि उनके हाथ तेज चलते हैं तो वो पेस यूज कर सकते हैं. तो अगर आप नहीं कर सकते, आपके हाथ नहीं तेज चलते, आप नहीं कंफर्टेबल, तो आप रूम दे लें. आप ओवर पॉइंट खेल लें. तो इसीलिए जो प्लान्स हैं कंडीशंस को असेस करके वो इंडिविजुअली जो है हर एक को अपना उस वे ऑफ प्लेइंग जो है वो निकालना है. फिर आपको जो है एज अ टीम सक्सेस. कंपैरिजन करें बाबर और रिजवान का, तो बाबर जो है उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो थोड़ा सा वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा रूम लेता है. वो थोड़ा सा लेग साइडिश होके इवन क्लोज बॉलों को भी कवर और कट मारता है और अच्छी मारता है. इवन जो न्यूजीलैंड के गेम से पहला चौका मारा उस पर भी उसने थोड़ा सा रूम दिया और इतना बाहर बॉल नहीं था. रिजवान नॉर्मली अदर वे राउंड है, वो ऑफ स्टम्प पे जाके कोशिश करता है कि बॉडी में आए और उसको पेस को यूज़ करे. तो बिल्कुल ठीक बात है कि हर बंदे का हैंडल करने का एक डिफरेंट तरीका. बट मिस भाई, ये आपने ऑब्जर्वेशन की थी हमारे जो पिछले एनालिसिस के जितने भी शोज हुए थे, आपने कहा कि रिजवान को दे काइंड ऑफ फिगर्ड हिम आउट कि ये ऑफ स्टंप के बाहर स्ट्रगल करते हैं. और बट इन द सेमीज वी सॉ कि बाबर ऑन साइड खेल रहे थे, अराउंड हिज लेग्स, एंड रिजवान वाज आल्सो हिटिंग रियली वेल आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड गेटिंग दोज रन्स. आई थिंक दैट वाज द की. वो जो पहला उसने चौका मारा है रिजवान ने, वो प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गया न्यूजीलैंड का, क्योंकि वो शायद ये सोच के आए थे कि इसको वहाँ से ट्रबल हो रही है चौथी पांचवी स्टंप से. बट वो जो शॉट लगी है उसके बाद सडनली गरम हो गए उसके बाद प्लान उनके. और फिर बाबर ने अंदर वाले बॉल पे, अंदर पे वो फंसा हुआ, तो वो अंदर वाले बॉल को एक आधा उसने शॉट मारा है. तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं और यही तरीका होता है आपको दूसरी टीम को किसी न किसी तरीके पे अपनी स्ट्रेंथ पे लाने का. एक चीज़ ज़रूर है, आज तुसी चुकन्ने है. अच्छा. Very nice. Let's talk about the English batting lineup. In fact, the English team altogether. एक सवाल है, and Wasim, you've been such an integral part of the Pakistan Super League (PSL), and where a lot of English players have a lot of exposure in the PSL. Yes. Which means कि उन्होंने हमारे जो bowlers हैं, batsmen हैं, उनको बहुत करीब से देखा हुआ है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया हुआ है, उनके खिलाफ खेला भी हुआ है. एंड आई एम लुकिंग एट दिस लिस्ट. इट्स एलेक्स हेल्स, क्रिस जॉर्डन, लिविंगस्टन, टिमॉल मिल्स, डेविड मलान, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रुक, मोइन अली, डेविड विली. ऑल ऑफ देम प्ले द पाकिस्तान सुपर लीग. हाउ मच एडवांटेज डू दे गेट आउट ऑफ प्लेइंग द PSL इनटू दिस गेम टुडे? I think PSL, for starters, PSL is played on Pakistani soil, Pakistani pitches, good batting decks, scores over 200 plus. It's a Melbourne pitch, it's a World Cup final, different ball game altogether. And we have the best pace attack in the world right now. We've showed it time and time again in this World Cup as well, and even before. हमारे दोनों फास्ट बॉलर यंग हैं.
Haris is about 27, 28, I think, if I'm not mistaken, peak of his bowling career, bowling form as well. So yeah, इसके बारे में I think ये फर्क नहीं पड़ेगा कि PSL खेले में कि नहीं खेले. Different pitch. I'm glad that you got the age right. आपने मेरे वाला हिसाब नहीं किया नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ. स्टैट वसीम भाई आपको बता रहे हैं, हैरी ब्रुक्स के इवन अगर स्टैट है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 6 इनिंग्स में उन्होंने 238 रन किए, तकरीबन 80 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 163 का, लेकिन दूसरों टीमों के अगेंस्ट 10 मैचों में 114 रन है, 11 की एवरेज. मतलब भी ला लो. मतलब ऐना पढ़ रहे हो कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ऐनक ला लो. तो वो जो आपने बात की है ना कि डिफरेंट कंडीशंस है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, PSL का फ़ायदा यहाँ पाकिस्तान में है, बट वहाँ जाके कंडीशंस डिफरेंट है, तो इट्स डिफरेंट. आई थिंक तो फिर फायदा दोनों को है ना, पाकिस्तानी भी उस तरह खेले हुए हैं. एक चीज़ ज़रूर होती है, अगर आपने किसी को फेस किया हुआ है एज अ बैटर, तो एक कंफर्ट लेवल ज़रूर होता है आपका, वो रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, तो वो एक कंफर्ट लेवल ज़रूर होता है. और PSL की जहाँ बात हुई, आई गेस हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन आते हैं दुनिया भर से, लेकिन हमें बॉलर्स को भी लेना है जो बेस्ट बॉलर हैं दुनिया के, ताकि हमारे बैट्समैन भी जो हैं, एक तो आपके यंगस्टर्स भी उनके अगेंस्ट खेलेंगे और उनको आइडिया होगा. और आई गेस IPL में आप देखेंगे बहुत सारे उनके यंगस्टर्स इसी तरह बने हैं कि वर्ल्ड के जो बेस्ट बॉलर्स हैं, दे गो टू इंडिया, दे प्ले इन द IPL. तो आई गेस हमें भी थोड़ा सा, इवन दो हमारे पास बॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम उन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन कुछ रखने चाहिए. After the IPL. Since the IPL started, they won the World Cup in 2007. But yes, you're right. एक्सपीरियंस मिलता है आपको अच्छे बॉलर्स का खेलने का. लेकिन वसीम भाई, वो डिफरेंट स्टैट्स हैं, ये डिफरेंट चीज़ है कि आप देखें कि वहाँ बैट्समैन कितने आ रहे हैं और क्वालिटी बैट्समैन आ रहे हैं. तो आई गेस समवेयर डाउन द लाइन हम यहाँ पे बुलाते हैं, हमारे बॉलर्स बनते हैं, हमारे बॉलर्स कितने आते हैं, फिर उसी हिसाब से कर देंगे. तो दो साथ में होगा, तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं, इवन दो ये ग्रेट्स हैं मोस्टली सारी टीम्स के साथ, तो बहुत एडवांटेज होता है. लेकिन ऑन द फील्ड जो है, जब आपके साथ कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉलिंग कर रहा होगा, तो ऑन द फील्ड ज़्यादा जो है Stain was here a couple of years ago, played for Quetta Gladiators. We bowlers आते हैं, but हमारे यहाँ I think bowlers का pool बहुत अच्छा है. हमारे अपने domestic जो लड़के young भी आ रहे हैं, emerging भी जो आते हैं. Right, and with that, we're going to take a break here on the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and our coverage of the ICC Men's T20 World Cup Finals today from Melbourne. We'll be right back. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY app and our coverage of the ICC Men's T20 World Cup Finals today. England बामुकाबला पाकिस्तान. अब से कुछ देर बाद हम आपको टॉस की तरफ लेकर जाएंगे. इस वक्त हम अपने पैनलिस्ट से बात कर रहे थे टीम के हवाले से. मार्क वुड के बारे में ज़रा बात करते हैं बकार. हमने देखा कि वो प्रैक्टिस में नज़र आए और बहुत शदीद पेस के साथ बॉल कर रहे थे प्रैक्टिस में, लेकिन कोई अपडेट है? विल ही बी इन द स्क्वाड टुडे? विल ही बी इन द प्लेइंग 11 टुडे? Are you asking us? Him. How would we know? I'm just asking. He has some guesswork done on it. That's why I'm asking him. I think अगर तो वो fit हुए, and I think it's a big advantage to England. So they will make sure कि वो खेले. मलान भी खेलेगी. वो मलान has been the number one their batsman. So if he's fit, yeah, he's going to be a force. विकी, मिलान के आने से उनका मिडिल ऑर्डर सेटल हो जाता है. फिल सॉल्ट इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर. फिल सॉल्ट इज एन ओपनर. हाँ. सो मिडिल ऑर्डर में अगर मिलान आएगा तो उनका आई थिंक कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाता है. उनको एक बंदा जो कहते हैं ना शिप को स्टडी करने के लिए एंकर रोल खेलते हैं, और वो आई थिंक ही विल प्ले दैट. सॉल्ट भी उसी तरह खेलता है जैसे द टॉप दोनों ऊपर वाले खेलते हैं. सो वी डोंट नो एग्जैक्टली इफ दे बोथ फिट, बट ऑफ कोर्स अगर दोनों वो फिट हुए तो आई थिंक दैट इज गोना बी डेफिनेट एज टू इंग्लैंड ऑन दैट पार्ट. ये वुड यहाँ पर पाकिस्तान में जब खेला था ऑन स्लो पिचेस ही वाज हार्ड टू हैंडल, बट आई फील कि मेलबर्न की पिच पे क्योंकि इवन बाउंस होगा, ये बॉल कैरी ज़रूर करेगा, अच्छा जाएगा, लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन कैन हैंडल हिम देयर बेटर देन हियर. सो फार जो हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है वुड का, अपार्ट फ्रॉम पेस, ही गेट्स विकेट्स इन द लास्ट 4 ओवर्स मोस्टली. पहले 1-2 में उसको विकेट कम मिली है, आखिरी 4 में उसको विकेटें मिली. श्रीलंका के खिलाफ आई थिंक ही मेड अ कम बैक, गॉट 2 क्विक विकेट्स विद हिज पेस. आई थिंक वो पेस से जब क्रॉस जाते हैं मारने तो तब प्रॉब्लम होती है. आई गेस अगर यहाँ पे बाउंस और पेस आएगी इस वेन्यू पे मेलबर्न में, तो उसका सबसे बेहतर यही है कि आप नहीं प्लान करो एज अ बैटर
कि मैं इसको ये वाला शॉट मारूंगा। जो पेस बॉलर होता है, जस्ट वॉच द बॉल और कनेक्शन अच्छा होना चाहिए आपका अगेंस्ट पेस, और आई एम श्योर रन्स मिलेंगे सारी जगह पे। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ना कोई शॉट बना लें। अगर आप किसी मीडियम पेसर के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो फिर आप प्लान कर सकते हैं एज अ बैटर कि मैं ये वाला शॉट खेलूंगा, ओवर पॉइंट खेलूंगा, सामने खेलूंगा, या ये फील्ड प्लेसमेंट है। बट अगेंस्ट रियल पेस आई गेस जस्ट वॉच द बॉल। कहीं ना कहीं तो एंटिसिपेट करना पड़ेगा ना आपको। यू कांट जस्ट सॉर्ट ऑफ से कि चल मैं सिट बैक। अगर वो अच्छी लेंथ पे बॉल करता ही जाए तो देन यू आर इन ट्रबल। नो वी टॉकिंग अबाउट इन द डेथ ओवर्स। डेथ ओवर्स आई एम श्योर वो भी ये सोचेगा कि आप मुझे मारेंगे, वो भी अपनी टैक्टिक्स जो है वो चेंज करेगा। तो इस वजह से आई गेस उसको सिर्फ उसका पेस देखें, और हाँ अगर उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है तो फिर आप कर सकते हैं। ये जैसे हट के रूम बना के उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा स्पेल किया था। लेकिन इसी मैच पे मार्कवुड ने ये भी कहा कि हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ चले गए थे शुरू में। देखो ये जो विकेट गिरी है, ये लेंथ की बात करते हैं हम, और फुल बॉल थर्ड मैन तक चलेगी बिकॉज ऑफ द पेस। तो इसीलिए वसीम भाई उसने प्लान किया हुआ था कि मैं इनको जहाँ भी आएगा मैंने बस घुमानी है। इस वजह से ना इनको ये सारी विकेट्स मिल रही हैं। मेरे ख्याल में ये है कि जब बहुत तेज़ बॉलर हो और उनके पास वेरिएशन कम हो, और ऐसी ना हो कि जो चेक ना हो बैट्समैन से, तो उनको सिर्फ यही है कि जस्ट वॉच द बॉल, और एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए बैट के साथ, और जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री हो, जब पेस से बॉल लगती है तो वो जाती। और नॉर्मली जो इनका फील्ड प्लान होता है वो इनके मिड ऑन मिड ऑफ जो वो सर्कल में होते हैं, इवन एंड के वोजमैन मिड विकेट रखते हैं, स्क्वायर लेग रखते हैं, फाइन लेग रखते हैं, स्वीपर होता है, थर्ड मैन वेरी फाइन। तो बेसिकली उसमें वो कोई, जैसे मलिक कह रहा है कि वो कोई एक दो बॉल आगे भी करते हैं इसी फील्ड में। बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ या लेंथ बॉल करेंगे, बाउंसर यूटिलाइज करेंगे। विकटें भी ज़्यादा इसीलिए क्योंकि वो उस पेस पे जब तीन फील्डर इधर होते हैं उनको क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इट्स द राइट वे कि आप जो गेंद वो आगे करते हैं आपके सामने, उसके लिए आप कम से कम तैयार हैं। सबसे बेस्ट यही है कि शॉर्ट बॉल से आप डील ही अच्छा तब कर सकते हैं जब आप आगे रहते हैं। जब आपका वेट पीछे गया नहीं, आप स्ट्रगल करेंगे। और हम लोगों ने मोस्टली ये देखा, जैसे मिसबा भाई ने कहा मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर हैं, और ये बता रहे हैं कि हम शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे। विकेटें उनको अगले बॉल पे मिली हैं, तो इसीलिए जस्ट वॉच द बॉल। अनदर बैट्समैन जो पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट होगा वो शान मसूद होगा, आई थिंक, बिकॉज वो बाउंसी पिचेस पे बेहतर खेलता है, और रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी बहुत अच्छी है। सो आई थिंक यू नो बड़ी फील्ड है तो आपको भागना पड़ेगा। यू हैव टू रियली रन फॉर योर स्कोर्स। सो यू नो इट्स गोना बी वेरी क्रूशल कि आप, ठीक है बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट, अर्ली ऑन बाउंड्रीज चाहिए होंगी, लेकिन ये है कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प। That will also. We've got Sam Curran with us right now. Let's listen in. Sam, a lot of the words used for the semi-final win I was hearing was hammering, clinical, jaw-dropping. How did the team react post that win? Yeah, it was an amazing performance. We were really excited. What a way to beat India in a semi-final. The way Joss and Halesy played was truly incredible, and we enjoyed the win, but we know that tonight's the night that we came to Australia for, is to be in a World Cup final. And yeah, we're really excited, and hopefully we can have another good night. How do you keep all those emotions in check? You've come off the high of that win. Now you've got to settle yourselves down now and be really clear once you take the ground. Yeah, we do, and there's no hiding place that it's hard to treat tonight like another game, because it is a World Cup final, MCG against Pakistan. It's going to be bouncing, and we're really excited by that. And walking around town this morning, there's a lot of fans and excitement, and hopefully the rain stays away, which it's looking quite positive, but we won't focus on that too much. We'll try and just play the game like we think it's going to be 20 overs, and fingers crossed it's our night. You're bouncing too, because we just had a chat. It's your first ever game here. I know Ireland got washed out, but to actually bowl a ball, how does that feel for you? Yeah, it'll be good. I'm having, like you said, MCG, I've been here a few times, but never really played a full game here. So I heard a lot about the crowd and how busy it can get. It's obviously a massive stadium, and we know there'll probably be more Pakistan fans than English fans, which will be a challenge, but maybe a few Indian fans who are supporting us, so who have got tickets. But no, it's going to be amazing. There's no hiding place. I'm incredibly excited, and yeah, whatever happens tonight, let's hope it's our night. Have you allowed yourself just to dream a little bit big about lifting that trophy a little bit? I have, but I don't want to get too excited. I just going to try and, once I get on that field, it's game time, and just try and do what I do, treat it like another game. But yeah, like I said, hopefully we can put another performance. I don't care how it happens, as long as we can win. Love it. All the best tonight, Sam. Thank you.
All right, they're not being very cautious with his words, especially when it came down to the question of lifting that trophy. How important is Sam Curran going to be for England today, Fakat? थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अच्छी बॉलिंग की हैं, एक आधे मैच में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन ओवरऑल गुड ऑलराउंडर. बैटिंग अभी इनकी टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन बॉलिंग ऑफ कोर्स डेथ ओवर में भी कप्तान पे हैवीली रिलाई करता है. अच्छा स्लोअर वन है, स्विंग भी करता है नया बॉल. सो ही इज़ गोना बी अ वेरी वेरी क्रूशल मैन इन द स्क्वाड. क्योंकि इसके बॉल की पेस का आइडिया नहीं होता समटाइम यू फील के इज शॉर्ट, इज़ नॉट रियली गोना come out with that sort of pace, but he can really surprise you. So, they have got a good bowling lineup. We all know that, and he's just a clever bowler. Yeah, he's a smart bowler. With 135, length change करता रहता है, एंड के ओवर में आँख पूरे पीछे भी कर देता है, स्लो बॉल भी बाउंसर कर देता है, यॉर्कर भी अच्छे करता है. So it shows कि ज़रूरी नहीं है कि पेस ही हो तो आप T20 में कामयाब हो सकते हो. आपके चालाक होना पड़ता है, स्ट्रीट स्पान होना पड़ता है, जो ये है सैम. और बाउंसी पिच बहुत पे अच्छा यूटिलाइज और बाउंसी पिच पे इसने अच्छी बॉलिंग की हुई है. पर्थ में इसने 5 आउट किए थे. सो ही अंडरस्टैंड एंड ही नोज हाउ टू बॉल इन दिस सॉर्ट ऑफ पिच. आई गेस इनके लिए बेस्ट है हार्दिक पांड्या की इनिंग्स, जो सेमीफाइनल में उन्होंने इनके अगेंस्ट खेली है, कि बहुत जल्दी मूव कर लेते थे, फिर अपनी बेस बना लेते थे. फिर जिस तरफ बॉल आता था, क्योंकि उस तरह पेस नहीं है, तो जिस तरफ बॉल आता था उसी तरफ वो है उसको टारगेट करते थे. तो आई गेस पाकिस्तानी बैटर्स सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है मलिक के, जो आप कह रहे हैं ना कि उस तरफ मूव करके ये नॉर्मली जो ये बाउंसर करता है स्लाइटली, वो उस एंगल से यहाँ से ओवर द स्टंप जब करता है तो वो ऑफ स्टंप के बाहर होता है. ये शॉट जब मारी है ना उसने स्लोअर वन पे, तो उसके बाद वो फंस गया. वो उसके पास सारे ऑप्शन हैं, एंड दे हैव टू कम बेसिकली उसके जोन में. ये नॉर्मली ये एंगल यूज़ करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर वन करते हैं, और वहीं से यॉर्कर्स भी उसी तरफ करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एंगल को यूज़ करने के लिए आप पॉइंट अगर ऊपर और थर्ड मैन ऊपर है, यॉर्कर को उस तरफ खेलें, शॉर्ट ऑफ लेंथ को कवर की तरफ भी खेलें. जब फैच करने जाते हैं सिर्फ इस तरफ, ज़्यादातर विकेटें अगर आप देखेंगे मिड विकेट स्क्वायर लेग पे कैचेस होंगे इनके. और सिंपल है, हमारे सामने सारी एग्जांपल्स हैं. अगर हम देखें कि 12 बॉल पे सिर्फ एक बंदे ने 50 रन बनाया है, युवराज सिंह ने. मोस्टली ये होता है 17 बॉल्स या 18 बॉल्स. वो भी आपको एक 25-30 मैचेस के बाद आपको ऐसी इनिंग्स खेलने को मतलब देखने को मिलती है. तो इट शोज़ कि हमेशा मिड ऑन मिड विकेट पे नहीं छिक्के लगते. नॉन रेगुलर भी आएगा ना, वो आपसे 4 छिक्के नहीं खाएगा इन 2 एरियाज़ में. तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि एज अ बैटर यू गॉट टू प्ले, यू गॉट टू यूज़ the whole ground to score runs. And it must be Vicky very difficult for bowlers nowadays, because हमारे दौर में मेरा नहीं ख्याल कोई बैट्समैन ऐसे ऑफ स्टंप पे गया है. कुछ हुआ ये तो रूम ही दिया गया है हमें, या निकले हैं. ऑफ स्टंप पे कोई नहीं गया 90s में. इवन हमें भी नहीं था पता हिटिंग में कि हम भी रूम देते थे या निकलते थे. 2 चीज़ें बदली हैं सिंस फ्रॉम आवर टाइम टू दिस. एक ऑफ कोर्स ये जो अंदर जाके आप जो ऑन साइड पे खेलते हैं, ऑफ कोर्स बिग हिटर्स, बिग बैट्स, इक्विपमेंट जो डिफरेंट हो गया है. और दूसरी चीज़ है कि अब जो बैट्समैन मॉडर्न डे क्रिकेट में है, ये डेप्थ ऑफ द पिच, डेप्थ ऑफ द क्रीज दे यूज इट, दे रियली गो. अगले दिन आपने देखा है पांड्या ने ऑलमोस्ट हिट विकेट. सो दैट मीन्स दे गिव देमसेल्फ अ लिटिल बिट मोर टाइम. एंड देन ऑफ कोर्स जब मलिक कह रहे हैं कि दोनों साइड हैं और सामने भी दे सो स्ट्रॉन्ग नाउ डेज कि आप वो कहीं पे भी हिट करते हैं. नॉर्मली जावेद भाई यूज्ड टू डू दैट, वो थोड़ा सा उस तरफ जाते थे, बट बाकी सलीम मलिक, एजाज अहमद, इंजी भाई, ये उस टाइम पे जितने भी थे, ये क्योंकि ऑफ साइड पे एक स्वीपर है सिर्फ या थर्ड मैन है, तो एक्स्ट्रा कवर बड़ा गैप है, तो ये नॉर्मली रूम दे के खेलते थे. इवन एजाज भाई से कई दो बात हुई है, वो एंड पे हिटिंग जब करते थे तो वो अंडर 19 को भी प्रैक्टिस करा रहे थे. और मलिक वो और मलिक क्या करते थे कि ये स्पिन एक तो था ना, आप रूम देते हो, लास्ट मिनट पे स्पिनर जब डिलीवर कर रहे हैं पहले ही नीचे बॉल करने से पहले ही लेग स्टंप के बाहर खड़े हुए थे, 3 विकेट दिखा रहे थे. इवन फास्ट बॉलर्स पे भी. और फिर वो ये बताते थे हमें जावे कि नाउ बॉलर हैव नो बेसिकली प्लेस, कोई वो एरिया नहीं है उसके पास. अगर फुल करेगा अंदर भी तो आप उसको एक्स्ट्रा कवर मार सकते हैं, बाहर करेगा तो आप पॉइंट के ऊपर से भी मार सकते हैं, एक्स्ट्रा कवर भी जा सकते हैं. और अगर वहाँ से वो फॉलो करता है तो देन कोई वरी नहीं है आपके लिए. टेक्निक माइट नॉट वर्क इन मॉडर्न क्रिकेट, बिकॉज अगर आप जितना वो पीछे जाते थे ना, सलीम भाई जैसे जितना पीछे जाते थे ना, यूज्ड टू मूव लाइक काफ़ी सारा पीछे चले जाते थे,
तो आप जो बॉलर हैं वो दैट ट्रैप लाइन जो वाइड यॉर्कर है ना वो माइट हार्ड टू सॉर्ट ऑफ फैच दैट। और ऑल्सो इफ यू बैटिंग अगेंस्ट मीडियम पेसर, उसके लिए तो वो हार्दिक पांड्या वाली जो टेक्निक है वो आइडियल है, क्योंकि वो इतनी पेस नहीं आपको आती। तो अब आपने दोनों साइड्स जो है ना वो कवर कर ली। अब मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करोगे तो मैं मारूंगा कवर में, मेरी तरफ करोगे मैं इधर मारूंगा, स्टंप्स में करोगे मैं सामने मारूंगा। तो आई गेस वो आइडियल टेक्निक है जो हार्दिक पांड्या की। हाँ, अगेंस्ट पेस बॉलर वो भी अगर प्रेडिक्टेबल है, ही इज़ बॉलिंग विद इन द स्टंप्स, फिर आप रूम दे के खड़े हो सकते हैं। तो आई गेस जितने एनालिस्ट आ गए हैं, मैचअप्स आ गए हुए हैं, तो आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। सो एज अ बैटर कभी भी एक माइंड के साथ आपको नहीं जाना, आपको ये सोचना है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। तो यूर रेडी एंड प्रैक्टिस सेशन जो है वो आपके हर किस्म की शॉट की जो है वो आपकी होने चाहिए, ताकि आपको फ़ायदा हो कि अगर मैच में मेरे सामने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग आ गई है तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा, स्टंप्स में है, मेरी बॉडी में है। तो इसीलिए आपकी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। बट हाउ गुड वाज इजाज अहमद, इजाज भाई in Australia, playing that cut shot, he was just amazing. He's got hundreds there. He's got 300s there and 3 in Pakistan. 12 में से 600 उसके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, 3 उधर 3 इधर। लेकिन why मजे की कट शॉट मारते थे, वो देखते सामने थे। हाँ, लेकिन यूं कर उस दिन आपने एक्सप्लेन किया ना उनका स्टांस। Yeah, he was a good player. All right, let's talk about Wokes now. Wokes बस अब उनका चपड़ासी रह गया, बाकी सब पे बात कर ली है। नहीं, मैनेजर भी है, मैनेजर भी है, कोच पे भी बात करनी है। सुबह 8 बजे बात पहले आके ये तो बस जीनियस आइडिया सी, I don't know. जिन जीनियस का आइडिया था वही बताएं कि किसका आइडिया था कि ये इतना लंबा। एंड आई केप्ट सेइंग दैट वी शुड स्टार्ट एट 11, रिमेंबर मिसवा, दिस इज वेयर। चलिए इस मौके पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है रेस्ट ले लेते हैं। और इट्स अ बिग गेम, इट इज अ बिग गेम। अगले साल एक वर्ल्ड कप है, उसके फाइनल पे मिसबा भाई से पूछते हैं क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही है, मगर उससे पहले एक वक्फा ले लेना चाहिए। You're watching A Sports 10 Sports and the ARY's app, and today is our coverage of the ICC Men's T20 World Cup Finals in Melbourne. It is Pakistan versus England. We'll be right back after these messages. Right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं Akram. आप देख रहे हैं A Sports 10 Sports and the ARY's app, and today is the big day. It's the ICC Men's T20 World Cup Finals at Melbourne. पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड। अब से कुछ देर बाद आपको बराह रास्त टॉस के लिए लेकर चलेंगे, मगर उससे पहले ब्रेक में मिसबा आप लियम लिविंगस्टन के बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे, तो प्लीज़ रोशनी डालिए। मेरे ख्याल में इंग्लैंड की जितनी भी बैटिंग लाइनअप है, मिडिल ऑर्डर स्पेशली और लोअर मिडिल ऑर्डर, उसमें कोई उस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं आया। आई थिंक दैट्स समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान कि उनका मिडिल में इतना टाइम नहीं गुजरा। जिस किस्म के वो बैट्समैन है और जो वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो अभी तक इस वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया, एंड दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली उसकी जो बॉलिंग है वो बॉलिंग में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 3-4 ओवर वो करते हैं, कहीं पे भी उनको यूज़ करते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए एक वरी है। हैरी ब्रुक्स ने भी रन्स नहीं किए, लिविंगस्टन रन नहीं करे, मोइन अली की भी मिडल में कोई इतना टाइम नहीं गुजरा। तो देखने में तो हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप 11वें नंबर पे आदिल रशीद आते हैं जिनकी फर्स्ट क्लास की सेंचुरी हैं, बट मैटर ये करता है कि उस टूर्नामेंट में आप किस फॉर्म में है, उस टूर्नामेंट में क्या किया हुआ है, वो आपकी टीम को ओवरऑल कॉन्फिडेंस देता है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ एट द मोमेंट प्लेइंग इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। और वो जो मलिक ने भी बात की सब ने कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले 6 ओवर्स में अगर हम स्ट्राइक करते हैं, हम अर्ली विकेट्स लेते हैं, तो then it is going to be very interesting. I just saw this Haris Rauf's racket against Hales. That's a good sign. Yes. उसको उसने 2 दफ़ा आउट किया है, 26 स्कोर रन किया है, 28 गेंदें फेस की हैं। So Haris can actually get us a wicket early on after एक ओवर वो कर हेल्स हारिस तक जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू ब्रिंग चौथा ओवर करता है नॉर्मली, नहीं जाना चाहिए दोस्तों तक, उधर तक जाना ही नहीं चाहिए। उधर भी अगर पकड़ लें तो मेरे ख्याल में कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर हम इनके ओपनर्स पहले 6 ओवर्स में भी आउट कर लेते हैं, गेम ऑन है। जैसे मिसबा भाई ने कहा है ना कि ये ठीक है, बहुत डीप है, उनकी डेप्थ है बैटिंग में, वो तभी जो है हैंडी हो सकती है जब उनको ऊपर से स्टार्ट मिलेगा।
जब उनको ऊपर से स्टार्ट मिलेगा तो उनको उनका गेम प्लान में क्लैरिटी आ जाएगी जो नीचे मिडिल ऑर्डर में। और जैसे मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, मोइन अली की भी बात की है, लिविंगस्टन की भी बात की है, जैसे हैरी ब्रुक, उसका रैकेट पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट 80 की एवरेज है उसकी, यू नो। बट ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी एवरेज 13 इनिंग्स 93 रन्स एवरेजिंग 7.15 strike rate of 88. That shows that maybe he struggles a bit against against pace on bouncy pitches. So that's a good sign. बिल्कुल good sign and we have a great attack. और I guess उसको exploit करना वो तभी advantage होगा क्योंकि जब middle order एक तो वो अच्छी form में ना हो और दूसरा struggle कर रही हो तो उनका जल्दी pitch पे आना वो फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको ना प्लान नहीं समझ आ रहा होता है एज अ बैटर कि यार मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं अपने शॉट्स खेलूं या स्ट्राइक रोटेट करूं या मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम ऊपर से आउट करते हैं। ऊपर से आउट करना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस फाइनल्स। दैट इज द की। अच्छा, एक चीज़ है, ये 16 टीमें जो इस वर्ल्ड कप में खेली हैं, 15 आउट ऑफ दो 16 टीम्स have used a spinner in the power play except Pakistan. Is this the day today that we deploy a spinner up front in the power play? Look, I don't know, to be very honest. Pitch तो ऐसा कह रही है कि you go with your pace attack और आपने पेसर से अच्छा किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब हुआ है। और स्पिन से आप उस टाइम शायद जाते हो कि जब पिच थोड़ी स्लो हो या थोड़ा सा टर्न हो तो फिर होता है। येस, मैचअप्स में हो सकता है कि अगर वो कोशिश करें कि नवाज़ को अर्ली ऑन एक ओवर करा सकते हैं, बट आई डाउट इट दो, टू बी ऑनेस्ट। Didn't we discuss that half an hour ago? Not really. मुझे ये लगता है एज वकार भाई सेड एज वकार भाई सेड के ज़रूर पेस से जो है स्टार्ट करना चाहिए। वेन्यू भी यही कहता है, लेकिन अगर वो 3 से 4 ओवर अगर खेल जाते हैं, आई वुड से 3 ओवर्स आपके पेसर्स के खेल गए ओपनर्स, फिर नवाज से बेहतर है कि आप शादाब जो है उससे एक ओवर जो है करवाया जाए क्योंकि वो हाईली दे आर डिपेंडिंग ऑन द ओपनर्स। और अगर हमने पूरा वर्ल्ड कप देखा हो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप द मिडिल ऑर्डर हैव बीन स्ट्रगलिंग। ये जरा पावर प्ले की एवरेजेस देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दिस दैट्स नॉट द पावर प्ले एवरेजेस ऑन द स्क्रीन, नाउ एट द पावर प्ले एवरेज। देयर यू गो। बेस्ट पावर प्ले रन रेट इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन है, साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है, ये इस वर्ल्ड कप का है बाय द वे। पाकिस्तान नहीं है इस लिस्ट में, ये टॉप आ जाएगा। Yeah, we didn't do well in power play. That doesn't matter. We qualified for the finals. Yeah. That matters. That's true. That does. But maybe today is the day that we bring the power play into play. I hope so, inshallah. I like the word play. We did in semi-final. Yes, we did. उससे पहले मैचेस ने हमारी वो सारी जो रन रेट है उसको बिल्कुल ही तबाह किया हुआ है पावर प्ले के, क्योंकि हम पहले मैच में भी हमने स्ट्रगल किया अगेंस्ट इंडिया एंड देन ऑब्वियसली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लो स्कोरिंग गेम थी, पिच भी ऐसी थी, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। बट आई थिंक करंट जो फॉर्म है, जो मोमेंटम है, दैट इज़ वेरी गुड। लास्ट गेम कॉन्फिडेंट हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो hope so get that. So power play का तो issue है, but look at where we are in the economy in the power play as our bowling unit. Look at this, Shine Shafri Institute. We are number 2, right behind Netherlands. That's why we are in the finals. That's why we are in the finals. That is and exactly. it shows this as well कि हम ऊपर से विकेटें लेते हैं, इसीलिए जो वो है वो जो स्ट्राइक रेट है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि आप विकेट्स लेंगे तो कोई भी बैट्समैन आएगा, ही टेक्स हिज टाइम। इसी वजह से हमेशा ये बात होती है कि बैटिंग आपको मैच जिताती है, वो बॉलिंग अच्छी आपको टूर्नामेंट जिताती है। तो ये दैट शोज़ कि पाकिस्तान अगर फाइनल में है तो उसकी वजह यही है कि आपकी बॉलिंग आपको यहाँ तक कैरी कर रही है, और जहाँ बैटिंग की थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस आई हैं, आप देखें सेमीफाइनल, फाइनल है, आपका वो जो कंट्रीब्यूशन बैटिंग की तरफ से आएगा, ऑलरेडी जो फोर्स है आपकी बॉलिंग वो काम कर रही है। आज जरा कैसा है वेदर तो पता करें। वेदर बेहतर होता जा रहा है, इट हैज बीन इंप्रूविंग राइट नाउ। वेदर इज फाइन आई थिंक सो फार। एक गुड्डा उंजी खड़ा है, गिला ना हो जाए। ओवरकास्ट है कंडीशन, अभी भी थोड़ा सा सूरज आया था बीच में, बट द चांसेस ऑफ रेन हैव गॉन डाउन टू 40%. So we're hoping it clears up. हवा चल रही है, तो the wind clears out the clouds. एक comparison हम कर लेते हैं between the two leg spinners of both the sides. शादाब versus आदिल रशीद. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ग्राफिक आ रहा है. Shoaib, take us through this bowling comparison.
5 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस खेले हैं, वो 5 विकेट्स जो हैं शादाब 10, आदिल रशीद 2, एवरेज जो है वो देखें ह्यूज डिफरेंस, इकॉनमी जो है मोर और लेस सेम ही है, और डॉट बॉल परसेंटेज जो है वो शादाब की ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो आई गेस ये कंपैरिजन अच्छा है, दोनों से एक ही चीज़ डिमांड करती हैं दोनों टीम्स, गेट अस विकेट्स इन द मिडल ओवर्स, and it's going to be crucial today. I think it's huge. It's huge impact in Australia. जिन पिचेस पे हम खेल रहे हैं 10 विकेटें शादाब की क्रूशल, और उसने बड़ी मुश्किल कंडीशंस जो स्पिनर्स के लिए थी उसमें भी उसने आउट किया, इवन पर्थ में भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग किया, तो दैट शोज़ कि उसकी फॉर्म अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त है। शुरू के मेक श्योर करता है जी, शादाब जो है ही इज़ बीन सो कंसिस्टेंट कि वो मेक श्योर करता है कि यार मैच जो है ना ये 170-80 वाला ना जाए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आके स्ट्राइक करता है, जब वो स्ट्राइक करता है तो टारगेट नीचे आता है, और अगर ओवरऑल देखें तो हम मैच खेलते हैं मोस्टली यही 150-160 वाला कंडीशंस को देख के, तो आई गेस वो आइडियल है। हमारी जो फॉर्मेशन बनी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से शाहीन विकेटें लेता है, ये देखें शादाब की और आदिल रशीद की ट्रैजेक्टरी कंपैरिजन। ये आई थिंक पेस है, पेस शादाब थोड़ा सा तेज़ करता है बॉल, शादाब विकेटों में भी कर रहा है ज़्यादा, विकेटों में भी करता है और थोड़ा तेज़ बॉल करता है अपना राशिद से। टुनाइट माइट बी लिटिल बिट डिफरेंट, यू माइट हैव टू जस्ट बॉल अ टच स्लोअर, क्योंकि पिच ऐसा होगा कि जहाँ पे आप जितना तेज़ करेंगे बल्ले पे उतना ही अच्छा आएगा। सो एंड आई एम श्योर शादाब को भी ये बात पता है, शादाब इतना अब एक्सपीरियंस हो गया है, आई मीन उसकी बैटिंग बड़ी हमारा बहुत बड़ा एज है हमारे लिए, और एंड इज़ अ बिग कैंडिडेट ऑफ बिकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप। आई थिंक कि वो 2 बॉलें जो शादाब की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2 बॉलों पे 2 विकेटें, वो बिग रीज़न है पाकिस्तान के हम आगे गए। अगर वो 2 विकेटें ना होती तो शायद DL पे हम पीछे थे, तो वो वहाँ से इम्पैक्ट शुरू हुआ है पाकिस्तान का टोटली जो कम बैक हुआ in this World Cup and the middle overs than anyone else. So that shows how important, crucial he is for Pakistan team. As apart from being a vice captain, even as an all-rounder, he's very important. और वो रन आउट जो लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले कॉनवे, उसने टोन सेट किया, ये जो 152 पे वो रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। सो आई थिंक he's been exceptionally well for Pakistan team. I hope he'll do the same today as well. Inshallah. Yeah, he has been an impact player. And with that, we are getting ready to take you live to Melbourne, जहाँ पे दोनों कप्तान जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड की सेंटर की तरफ जा रहे हैं टॉस के लिए. And we are going to be taking you momentarily. Just any second we'll have to cut away. इसलिए मैं आप लोगों की तरफ कोई सवाल नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि ये किसी भी वक्त हमें जो है वहाँ पर नहीं, आज अर्ली है, टॉस इज अर्ली टुडे. अच्छा, okay. And with that, it's time to take you to Melbourne, and this toss is brought to you by Dettol Soap. राइट दोस्तों, मेलबर्न से खबर आप तक पहुंच चुकी है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. मौसम को मद्देनजर रखते हुए, आपने सुना जॉस बटलर कह रहे थे कि मौसम यानी कि डकवर्ड एंड लुइस अगर प्ले में आता है तो दे वांट टू बी अहेड ऑफ द गेम एट सम पॉइंट. वसीम, on that toss. It's fine. Toss is not in your control, like the skipper said. Now they need to obviously not lose wickets first, दो 6 ओवरों में, and get runs on the board. Final, you always say bat first. Okay, rain का chance है. Again भी वो control नहीं कर सकते. Just focus on your own game. कि आज टॉस पे हमने कितना स्कोर करना है, टॉस जीत के, टॉस हार के बैटिंग आई है, और डाउन नहीं होना. It's okay. It's okay. So interestingly, Babar looked pretty confident even after the toss. And relaxed. Yeah, he looked very relaxed. I'm very happy to see that. Yeah, I think he also understands that the entire nation is behind them. So I think that gives him a lot of confidence. Or toss is not in your control. And I'm glad that he was smiling and he was happy. He's happy to be there. And now it's just a matter of just go out there and play your best cricket. Toss is just the way to start the game. That's what I think. For Pakistan, the good news is that Mark Wood and Milan are not playing. It's the same playing 11 for England that was in the semi-finals. Zara Pakistan ka playing 11 aate hain, and Shoaib, take us through this Pakistan playing 11. बाबर, रिजवान, हारिस, और बाबर और रिजवान पे आज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज देव बीन परफॉर्मिंग. शान, इफ्तिखार, शादाब, नवाज़. शान को निकाल के बाकी तीनों जो है साथ में बॉलिंग भी करते हैं. वसीम,
Shaheen, Rauf or Naseem. Same combination. Or I have high hopes from these four. They'll take early wickets and they put under pressure England team. And England playing 11, which is also unchanged. Mispa, take us through. Yeah, Butter, Hales, Salt. Previous game में जो टीम खेली है वही खेल रही है. I think Stokes, Brook, Moeen Ali, Livingston. Obviously big miss उनके लिए Wood नहीं है. Curran, Sam Curran, Vokes, Jordan, Rashid. So I think Pakistan will be quite happy कि Jordan खेल रहे हैं इन conditions में. Wood नहीं खेल रहे क्योंकि इस बाउंस के साथ जिस किस्म की वो बॉलिंग करते हैं वो शायद एक पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता. तो नॉर्मली जॉर्डन फुल बॉल करते हैं और ऐसी पिच पे जहाँ पे ग्रास है मुझे लगता है आई मीन ऐसा बॉलर थोड़ा आपके लिए आसान होता है हैंडल करना. दूसरे जो सीम बॉलर हैं या जैसे वुड जिस किस्म की बॉलिंग थोड़ा लेंथ बॉल करते हैं या शॉर्ट बॉल करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती है आपके लिए. तो आई थिंक इसका इतना स्टीप बाउंस नहीं है जॉर्डन का. बिल्कुल. पिछले मैच स्टेडी टाइप है. पेस ठीक थी इसकी 140 138 के करीब बॉल. बैटिंग पिचेस पे थोड़ी सी जो ग्रासलेस पिचेस हैं लो बाउंस पिचेस हैं उन पे क्योंकि स्लोअर वंस करते हैं यॉर्कर्स करते हैं ज़्यादा नॉर्मली डेप्थ में यूज़ करते हैं इनको. बट यहाँ पे जो मैंने देखा है प्रीवियस गेम्स में डेथ बॉलिंग में भी आपके जो लेंथ बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं वो ज़्यादा मुश्किल है. यॉर्कर्स पे या स्लोअर वंस पे आप जाते हैं तो उस पे रन्स बनते हैं. इंडिया पाकिस्तान की गेम में भी हमने देखा. तो होपफुली आई थिंक जैसे हम बात की कि टॉस इज जस्ट अ वे. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है प्रेशर से. How important? How much will England miss Milan today? I think if we look at the whole World Cup, particularly in this, even though he's a great batsman and he's been performing well, लेकिन throughout the World Cup he's been struggling. Right. और मुझे नहीं लगता कि इतना impact पड़ेगा उनके होने या ना होने से. All right, and with that, it's time for the expert predictions brought to you by Olivia. Okay, तो जनाब टॉस की खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी है. इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. बादल अभी भी मौजूद है. कुछ देर पहले थोड़ा सा सूरज नमूदार हुआ था लेकिन फिर बादलों के पीछे छुप गया है. मौसम जो है वो अभी भी ओवरकास्ट कंडीशंस जो है वो मौजूद हैं. एंड क्राउड जो है वो आपने देखा ऑलरेडी एट द टॉस टाइम वी हैड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैंस इन द ग्राउंड. या it's going to be a full house. It's a World Cup final. और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है. Look at the people with green flags supporting their team. Came out in numbers. It's going to be a cracker of a day today for Pakistanis all around the world. Yes. ये विकी भाई वाला हेयर स्टाइल लग रहा है जो कल पिक्चर नहीं देखी थी विकी भाई वाली. ये जो आगे नहीं चार लोग खड़े हुए. मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि ना दिखाओ नो सफर. कलर भी विकी भाई को सेम ही नजर आ रहा होगा ना. वो कह रहे हैं कलर. Look at these young kids. Images coming out. Day. And they made a lot of effort, play cards to support their team. It's a huge day for whole Pakistan. It is. But as we keep saying, look, what we have to celebrate today is Team Pakistan and the fact that we're playing the finals. We get the trophy, that's an added bonus. Even if we don't, we still celebrate today, Waqar. 100%. With all the odds that have been stacked against us, Wasim, over the years, Pakistan में international cricket absent हो जाना, कुछ लीगों में हमें खेलने से रोक दिया गया, कुछ लीगों में हम गए नहीं, फिर हमारी लीग में बहुत सारी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई. बैन अवी टीमें जब आई तो झूठी ईमेल्स बनाकर उनको यहाँ से जाने पे मजबूर किया गया. विद ऑल दोज ऑड्स stacked against us, here we are, where we are today is unbelievable. It's an achievement of this. We have just talent. We have talent, we have passion for our country. And I think ये क्रिकेट टीम या आगे के बच्चे जो आने वाले फ्यूचर में वो कहीं नहीं जा रहे. वो दुनिया की क्रिकेट में अपना नाम ज़रूर कमाएंगे. Yes. Well, I think this is the best answer to everyone. I mean, इतनी साल क्रिकेट ना पाकिस्तान में ना होना और फिर उसके बाद how good we are doing. PSL is doing great and we are in the finals. I mean, you can't ask for more from these boys. They have put in a lot of hard yards. They have really worked hard to get there and we are all really, really proud of them. You win or lose does not really matter from here on. So let's go out there and repeat the history. Yeah, if we can repeat the history,
just amazing. Why not? But the fact, as I said, कि इतनी सारी चीज़ें हमारे खिलाफ होने के बावजूद भी हम यहाँ तक पहुँच गए. I think हमें यही बहुत हमारे लिए बड़ी बात है सेलिब्रेट करने की कि जो बुनियादें हमने डाली और जो प्लानिंग दूसरों ने की, हमारी बुनियादें जो हैं उसके ऊपर एक इमारत खड़ी हो गई है मिसबा. बिल्कुल. आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को है, बिकॉज मैं अभी भी समझता हूँ हमारा सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा. बट हैट्स ऑफ टू देम कि वो दुनिया को compete कर रहे हैं. वो सारी शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा वो सिस्टम उस तरीके से नहीं है, बट स्टिल फाइनल्स में जा रहे हैं, सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं. तो मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ़ करें कम है उनकी. आई थिंक इफ़ वी कैन इम्प्रूव दैट, उनकी जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और वो लेवल ऑफ कंपटीशन अगर वो मिले यहाँ पे, तो आप सोचें कि पाकिस्तान और क्या क्या कर सकता है. वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुँचना, जीतना, ग्रेट अचीवमेंट. या बिल्कुल ऐसे ही है. शोएब, your thoughts, your final thoughts as we go into this final now. Very simple, put runs on the board and put England team under pressure. और ये नहीं होगा कि बहुत लंबी जो है उनकी बैटिंग है, ओपनर्स बड़े अच्छे फॉर्म में हैं, नहीं. आज जो है जितने भी रन्स होंगे बोर्ड पे, उनको चेस करने के लिए एक दफ़ा उनको पता ज़रूर चलेगा. उनको महसूस होगा. एडिड प्रेशर है, फाइनल का एडिड प्रेशर है. दोस्तों, आपसे कुछ लम्हात बाद हम आपको बराह रास्त लेकर जाएंगे और कुछ आपको anybody has any idea what kind of ceremony we are in store for today? Because I think we have a ceremony. There is a ceremony today. ये मुझे अभी पता लगा है. They're going to be Pre-match entertainment है आज ना. Okay, let's hope it'll be okay. It'll be nice to watch. What has been your favorite pre-match ceremony though? प्री मैच वैसे हमारे ज़माने में ऐसा कभी हुई नहीं. हमारे ज़माने टॉस करो, शुरू करो. बाहर आ गए, नो सेरेमनी. मैंने देखी है ड्यूरिंग चैंपियंस लीग फाइनल इन म्यूनिक. Right. The game was between Chelsea and Bayern, Bayern Munich. So वो मैंने देखी है क्योंकि मुझे एम्बेसडर बना, मैं और मेरी वाइफ, तो हम we were invited to come and watch the finals, Champions League का सॉकर मैच. तो मैं वाइफ का टूर्नामेंट चल रहा था, बट शी वॉज इन जर्मनी. तो मैं गया और मुझे उन्होंने 70 डिफरेंट कल्चर्स दिखाए. वो ग्राउंड के बाहर उन्होंने सारा सेटअप लगाया हुआ था, एंड आई हैव सीन ऑल दोस 70 डिफरेंट कल्चर्स, एंड आई इवन टेस्टेड सारा का डिफरेंट खाना वगैरह. इट वाज लाइक डिफरेंट, और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया. बट आई डोंट थिंक कि आज वो खाना खिला रहे होंगे. आप तो खिला रहे हैं, तुझे तो ऑर्डर हलीम और मैं देखी थी. है जी, मैच से पहले हो रही है सर. ये मैच से पहले है सर. हाँ, बाद में चौथे ओवर और 8वें ओवर के बीच में सर. I think I'm not a big fan of that, being a player. Because बिल्कुल आप मतलब मैच से पहले इतने हाई इंटेंसिटी गेम है, और उससे पहले आप बिल्कुल आपका जो फोकस है वो एक डिफरेंट तरफ चला जाता है. ज़ाहिर है कोई ना कोई प्लेयर्स वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे. अगर बॉलिंग है, आप थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, सडनली ये सेरेमनी होती है, एंड देन 15-20-25 मिनट आपका बिल्कुल पूरा वो डिफरेंट साइड पे चले जाते हैं, एंड देन यू आर going into bat. It's not that easy, especially. Ice House कोई है वो भी perform करे. I don't know what Ice House is. I have no idea, but Misbah-ul Haq definitely is not a fan of ceremonies. Yes, but So we've been through this. I mean, PSL की ceremonies जो पहली या एक दो हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, और हमारा पहला मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, and we half an hour before सामान नहीं जा रहा, वो चीज़ फंस गई है. You know, boys are ready, मगर वो ground ready नहीं है, so it gets a bit stressful on players. इतनी बड़ा मैच है, सारा फोकस उस पे है. Why you need to do that? After the game जो भी है करना है वो करें. Sure. I don't think after so. the game करना चाहिए. We can't do anything about it now. We can moan, we can crib about it and moan about it. You know, let's not moan. The grumpy young man that we have here with us. Let's not moan. उत्थे भी घड़तूत काफ़ी होंगे ना. What is the word? ये हमारे ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि वो जिस तरह आप कह रहे थे ना, too many quick वो घड़तूत भी यही है. ज़्यादा बंदे जब काम करने वाले हो ना तो मशवरे चलते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो. लेकिन कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग उनको ये चीज़ें पसंद भी आती हैं. हाँ, कुछ लोगों को आती है, बट क्लियरली मिसबा को नहीं आती ना. एक तो ये बात हो गई, ये यानी कि जमा हो गए. What happens today? We are with you, and with that we're going to take you live into Melbourne, जहाँ पे एक सेरेमनी है और उसके बाद बाकायदगी से मैच का आगाज़ होगा. दोस्तों, आप देख रहे हैं द पेविलियन.
on A Sports, 10 Sports and the ARY's app. एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तानी फैंस के लिए यही पैगाम कि आज जो भी नतीजा हो हमने जो है उसको सेलिब्रेट करना है regardless. And with that, we're taking you live now to Melbourne for the opening ceremony and the game. We'll see you on the other side of the game. Good luck, Team Pakistan, and good luck, England.